Hello everyone, good afternoon. I hope you all can hear me. Welcome to this workshop on cyber safety and awareness. This workshop is not only for the students, but for all the viewers, regardless of their age, job, or role. Security is important to all, as we all know, and we'll be discussing about some important aspects of security that we deal with in our daily lives. Before we go into the real discussion, I would like to introduce myself. I am an engineer in computer science and engineering. You'll be glad to know that I have done my engineering from Raval Institute of Engineering. I have been working as a specialist in the information security industry for like last 3 years, more than that, in fact. I have started my own company. I'm the founder of Chronoborg IT Services. It's a startup. I have certain industry professional certifications with me. I'm a certified ethical hacker issued by EC Council. I'm also having skill sets of information security standard, which is ISO 27001. I'm a certified payment card industry security implementer. I have skill sets for Cisco certifications of CCNA, which is Cisco Certified Network Analyst, and Cisco Certified Network Professional in security. I am truly a believer of respecting privacy, and I am working in the field for a cause, working towards a brighter life and a secure life for everyone in this industry. So now let's get started on what we are going to talk about today, and what are we going to learn today. So starting with, we'll be having a brief discussion about the data, information, and its digital form. Okay, I see there is some volume issues. Let me try to fix that. I hope it will be better now. Okay, yeah. So yeah, we'll catch up with some privacy standards and information security, and we'll also try to relate this in our today's world, how we stand as in privacy in today's world. you know we'll also discuss about the impact of smartphones and apps that we are using right now in this world. You all must be using a lot of applications. All of you have a smartphone. So we'll discuss about what it is costing us, and what's really running behind those applications and those smart devices. We'll also be talking about the role of social media into our lives. How is it invading our privacy? How's it actually bringing us to risk, and some information security related threats that nobody is really aware of, but it is still residing at the back. We'll also be talking about some common cyber attacks and how data theft are being done using by the hackers actually. We'll also be talking about cyberbullying and the supporting cyber laws. Most of us are like teenagers, so yeah, cyberbullying is something that some of you or maybe many of you would have faced or may face in future, because bad actors are always there in the world, and you never know what comes next to you. So we'll be talking about that, how we can prevent that, and how should we handle that situation. Then after all these discussions, we'll be talking about what we have been doing so wrong, and what is the right way to do that. Then, of course, we'll come to a conclusion on whatever we have learned, and at the end, we'll be running some question and answers. So I'll request all the audience to keep your questions waiting for the time when we reach out to the question and answers time. We'll be handling those questions at the end of the session. So let's talk about data. What is data? Anyone? Most of you actually will know what a data is. But yeah, I'll explain you it in brief, and we'll not spend much time on data information and its digital form.
So data is anything which is in raw or unrecognized, unorganized fact that is required to be processed to make it meaningful. What it means actually. So it can be anything that, let's say, for example, you have a book. Now, let's say if I jumble the words, when you read that out, it doesn't make any sense. But when I organize it in a sequence, it is the same data. If you sum it up, it is the same data. But when I organize it, it becomes information. It becomes meaningful. Now that data is actually converted into a information. Now you can see at the bottom you have some images. It's basically the English alphabets and the numeric digits. Now let's talk about how this is related to information. Now, information is a set of data which is processed in a meaningful way, like we discussed. Now, it comes using the same set of data. Now, you can also call it that information is a subset of the data in an organized way. Now, for example, for example, if you see at the alphabets, basically English के alphabets हैं, and when you organize it, for example, Vineet has two mobiles. अब इस स्टेटमेंट में जितने भी वर्ड्स हैं बेसिकली ये सारे आए हैं इंग्लिश के 26 अल्फाबेट्स एंड द 10 digits of the maths. अब इनको organize किया, we have made it in a sequence. Now it is making sense. Earlier it was not making any sense. Those were just English alphabets. Now you can say that this is a statement. Okay, now I understand what is this. Now let's talk about its digital form. So digital form is just the data, uska digital form, when it is converted to, like machine readable information, जो आपका computer, आपके smart devices, सारे understand करते हैं. It's basically the form of digital data. Now you can see this is a cloud of the data. It is like you can't really make out anything of this. इसको देख करके कोई कुछ नहीं समझ सकता. It is like anything in this world. Now, when you process it, आपके credentials, आपका personal information, आपके आपसे related हर चीज is like a data in a digital form. So basically, now we know कि data is a cluster of unorganized fact. कुछ भी चीज जो आपको समझ में नहीं आएगी, it's a collection of that. Information is a processed form of data. That's pretty much the difference between data and information. Now let's talk about privacy and information security. What is a privacy? So we'll talk about data privacy. Privacy, everyone knows, अपना personal space चाहिए सबको and all that. So data privacy is like अपने data को, which is your sensitive data, your personal data, all those informations when you want to keep them private, ताकि कोई और उसको ना देख पाए. I mean, कोई और as in जिसको आप नहीं चाहते कि वो कोई डेटा देखे. Of course, your family members should know about you. आपकी personal information उनके पास होनी चाहिए and all that. But you should be the one deciding. आपके हाथ में ये कंट्रोल होना चाहिए कि आपका डेटा कौन देख रहा है and कौन नहीं देखेगा. So data privacy एक right है आपका by the laws of India to have a control on your personal information. वो कैसे कलेक्ट होता है, वो कैसे यूज किया जाता है बाय द थर्ड पार्टीज एंड ऑल दैट इंफॉर्मेशन. सो डेटा प्रिवेसी एक एक्ट है जो आपको राइट देता है अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए और टू कंट्रोल कि इसका यूज कौन करेगा और कैसे कर सकता है. डेटा प्रिवेसी के लिए कुछ स्टैंडर्ड रूल्स बनाए गए हैं. नाउ फॉर एग्जांपल, वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग डेटा प्रिवेसी पॉलिसी जो बना है दैट इज जीडीपीआर. यूरोप के लिए एंड इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन के लिए ये जीडीपीआर एक्ट आया था विच इज़ ऑल अबाउट डेटा प्रिवेसी. यूरोपियन यूनियंस के सिटीजन्स के डेटा को आप कैसे सेव कर सकते हो, कैसे प्रोसेस कर सकते हो, कहाँ रख सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, एवरीथिंग इज इनसाइड जीडीपीआर. नाउ, डू वी हैव अ प्रॉपर data privacy act in India? The answer is no, but there's nothing to worry about. Then now let's talk about information security. हमने थोड़ी देर पहले देखा था what is information. Information is like anything in a processed way which can make sense. आपकी personal information हो सकती है, आपकी sensitive information हो सकती है, it can be anything, but it is making sense. Now to secure that, we have some standards
उनको सिक्योर करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं विच वी कॉल एज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। कुछ प्रोसीजर्स हैं, कंबाइनिंग दोज प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड्स इट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। नाउ the question is, do we have a strong data protection regulation in India? The answer is no. Should we worry? No. Because Data Privacy Act नहीं है उसके बावजूद it is up to you how to protect data. Of course, you can protect your data, and we will be talking about it. And of course, some of you may find this interesting in future. You know, you might want to pursue this as your career because Data Privacy Act जो बना रहे हैं, जो government bodies बैठे हैं, actually they are people like us. मेरे आपके जैसे ही लोग बैठे हैं. It is just that they don't really feel importance of this as of now. There are some news that we have, planning. We are planning to get some strong data privacy regulations, but we don't really know so far कि वो कब आएगा, what will be inside it, what will be it covering, and all that. So yeah, some of you can pursue this as a your future endeavor, and you can plan for a data privacy regulation act. You can be like playing a major role in those government bodies. So yeah, nothing to worry about. Now, अब बात करते हैं प्रिवेसी इन टुडेज वर्ल्ड। हम जो डेली लाइफ में चीज़ें फेस करते हैं यूजिंग आवर स्मार्टफोन, सोशल मीडिया पे ही लाइफ ऑलमोस्ट सारे टीनेजर्स की जाती है, इंक्लूडिंग मी। आई एम नॉट सेइंग कि मैं इन सब चीज़ों से बाहर हूँ। ऑफ कोर्स आई एम ऑल्सो स्पेंडिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया, बट देयर शुड बी अ बाउंड्री ऑन व्हाट आर वी शेयरिंग ऑन सोशल मीडिया। हम क्या शेयर करते हैं, किसके पास जाता है, हाउ इज इट बीइंग यूज्ड, वो कैसे यूज हो रहा है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, उसका हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। We will be discussing about those today. Now, this is a strong statement कि nothing is private anymore. When I say कुछ भी private नहीं है आज के time पे, it is a very strong and a blunt statement. Now, should we worry about this statement? Technically, no. Because like I said, you are the one in control of your data if you pay attention to the little details of what we are doing in our daily life. आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हो, आप कोई सोशल मीडिया पे जाते हो, यू नो कैसे डेटा जा रहा है, क्या डेटा जा रहा है, सब कुछ के बारे में हम डिस्कस करेंगे सो दैट इन कमिंग टाइम यू विल बी लाइक कैसे अपने डेटा को प्रोटेक्ट करेंगे, एंड इवन बिफोर दैट यू विल नो कि एक्चुअली मेरा क्या डेटा गया। मैं आपको शायद पता भी नहीं हो कि ये डेटा भी जाता है, और शायद आपको ये भी नहीं समझ में आएगा कि डेटा जो गया उसका यूज क्या हो रहा है। आप बोलोगे मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन, मेरे फोटोज चले गए, या मेरा मोबाइल नंबर सोशल मीडिया पे है वो चला गया, उससे क्या हो जाएगा। इट्स जस्ट माई मोबाइल नंबर, वो तो ऐसे भी इतने लोगों के पास है। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट हैपेंस, क्या होता है, कैसे इसका मिसयूज होता है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि हमारा डेटा कलेक्ट कौन कर रहा है। ऑफ कोर्स वी ऑल नो द आंसर, सोशल मीडिया है, एप्लीकेशंस हैं एंड ऑल दैट। बट मैं उससे थोड़ा और पीछे आता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट सम रियल लाइफ सिनेरियोज। थोड़ा डिजिटल एरा से बाहर आकर बात करते हैं। आप सब शॉपिंग करते होगे, बिग बिग बाजार, रिलायंस डिजिटल, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा, बट इट इज़ द फैक्ट। आप सब बिग बास्केट, ये सारे एप्लीकेशंस ऑनलाइन भी जाते हो, बिग बाजार जैसे लोकल मार्केट्स में भी जाते हो, ब्रांडेड है एंड ऑल दैट। उन सब के पास एक लॉयल्टी कार्ड होता है। दे कॉल यू सर लॉयल्टी कार्ड, रजिस्टर कर लो, आपको पॉइंट्स मिलेंगे, आपको ऑफर्स मिलेंगे। नाउ व्हेन यू रजिस्टर अ लॉयल्टी कार्ड, आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर होती है। आप अपना नाम बताते हो, मे बी अपना ईमेल एड्रेस भी बताते हो, आप अपना फ़ोन नंबर तो डेफिनेटली बताते हो, राइट। नाउ आपने बता दिया आपको पॉइंट्स मिल रहा है, ठीक है। यू आर पेइंग, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस 100 रुपीज़ है, आपने उसके लिए 100 रुपीज़ पे किया, बट जस्ट बिकॉज यू हैव अ लॉयल्टी कार्ड, आपको वो चीज़ 95 रुपीज़ में मिल रही है, 5 रुपए का डिस्काउंट मिला आपको। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। वो 5 रुपए कौन बियर कर रहा है? इज इट द कंपनी? क्या वो बिग बाजार बियर कर रहा है, या क्या वो लॉयल्टी कार्ड प्रोवाइडर बियर कर रहा है? द आंसर इज नो, वो बियर नहीं कर रहे। इट इज़ योर कॉस्ट दैट यू आर बियरिंग इन अ डिफरेंट वे। अब होता क्या है, जब आप वो लॉयल्टी कार्ड रजिस्टर करते हो, जब भी आप उस कार्ड को यूज करोगे, चाहे उसमें आप जो भी शॉपिंग करो, आपकी पूरी इनवॉइस डिटेल एक थर्ड पार्टी कंपनी जो उस लॉयल्टी कार्ड का स्पॉन्सर होता है उसके साथ शेयर की जाती है। अब क्वेश्चन है कि अगर मेरे शॉपिंग डिटेल्स किसी के साथ शेयर किए जा रहे हैं, उसका मेरे ऊपर क्या रिस्क है। अभी शायद आपको इसका रीजन समझ ना आए कि इसका क्या रिस्क है, बट while we go ahead in this session, आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि वो कैसे आपके ऊपर इम्पैक्ट डालता है, हाउ हाउ डज इट इन्वेड योर privacy।
और वो डेटा कैसे आपके अगेंस्ट मिसयूज हो सकता है। फर्स्ट थिंग इज ट्रैकिंग। आपको ट्रैक कर रहे हैं सारे थर्ड पार्टी कंपनीज, आपने कब शॉपिंग करी, आपकी शॉपिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, आपका मंथली बजट क्या है, उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस की जाती है आपका मंथली इनकम क्या हो सकता है। यूजिंग सम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम्स इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई। फॉर एग्जांपल अगर अगर आप ग्रोसरीज पे शॉपिंग कर रहे हो लेट्स से 15,000 अ मंथ, और आप लेट्स से दूसरी प्रोडक्ट्स पे कोई इंटरटेनमेंट को इलेक्ट्रॉनिक्स पे स्पेंड कर रहे हो लाइक 15,000 10,000, टोटल आपकी एनालिसिस जो जो आपने अमाउंट पे किया उसकी एनालिसिस करते हैं फॉर अ रेगुलर इंटरवल। लेट्स से आपकी लास्ट 3 मंथ्स का डेटा लेकर के उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं एंड दे ट्राई टू अज्यूम कि आपकी सैलरी क्या है, हाँ व्हाट इज योर फैमिली इनकम, आपकी शॉपिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, आपके पसंद क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप क्या शॉप करते हो, कौन से ब्रांड प्रेफर करते हो। नाउ a good example here is let's say आप ब्रांड ए यूज करते हो। नाउ ब्रांड बी पेज टू दैट थर्ड पार्टी कि जितने भी कंज्यूमर्स हैं जो मेरा कॉम्पिटिटर ब्रांड ए यूज करता है उनको ये एड भेजो, उनको ये प्रमोशन भेजो। मे बी माई प्रोडक्ट इज नॉट गुड इनफ, इट मे नॉट बी इवन सेफ फॉर यूज, बट स्टिल आई विल गिव यू ऑफर्स, आई प्रमोट माई प्रोडक्ट, मैं आपको टारगेटेड प्रमोशन करूंगा सो दैट यू गेट इंटरेस्ट इन दैट और आप उसको परचेस करो। नाउ सी, अर्लियर इट वॉज योर चॉइस, आप अपने चॉइस से शॉपिंग कर रहे थे। नाउ यू आर बीइंग फोर्स्ड इनडायरेक्टली, दे आर प्लेइंग विथ योर माइंड्स, वो आपके माइंड गेम्स खेल रहे हैं आपके साथ जस्ट टू यू नो अट्रैक्ट यू बाय सम ऑफर्स एंड ऑल दैट। सुनने में इट इज लाइक व्हाट एम आई टॉकिंग, इट्स ऑल नॉनसेंस, बट ट्रस्ट मी इट इज नॉट। यू माइट रिलेट दिस इन इन योर कमिंग लाइफ, आप एक बारी इसको ट्राई करके देखना, यू विल गेट द डिफरेंस। नाउ अगेन लाइक आई सेड, इनवॉइस शेयर होता है सारा कुछ, इट्स ऑल रिलेटेड टू योर शॉपिंग बिहेवियर। लेट्स कम टू नाउ द डिजिटल एरा। आप इतने सारे एप्लीकेशंस यूज कर रहे हो, मोस्ट ऑफ देम इज लाइक इन द स्क्रीनशॉट, वाइबर, स्काइप, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड द लिस्ट गोज ऑन, इट्स एंडलेस। नाउ यू नो द थिंग इज कि जब भी आप ये ऐप इंस्टॉल करते हो, ओके, यू कैन रिलेट दिस इमेज, इट्स बेसिकली अ परमिशन विंडो फॉर गूगल कॉन्टैक्ट्स। आप सबके फ़ोन में एंड्रॉयड यूजर्स जितने भी हैं, आप सबके फ़ोन में गूगल कॉन्टैक्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट आता है, राइट। नाउ टेल मी दिस, आप खुद सोच के देखो कि इसमें गूगल कॉन्टैक्ट्स को कॉन्टैक्ट्स की परमिशन डेफिनेटली चाहिए। फ़ोन की परमिशन चलो ठीक है, इट सिंक्स विथ योर फोन एप्लीकेशन, आप डायरेक्टली डायल पैड से अपने कॉन्टैक्ट्स को लुकअप कर सकते हो, इट्स गुड फाइन। नाउ डज इट रियली नीड एक्सेस, क्या उसको सच में कैलेंडर का एक्सेस चाहिए? लेट्स सी, ओके फाइन, अज्यूम फॉर अ रीजन उसको चाहिए। नाउ व्हाई डज इट नीड योर लोकेशन? what does it have to do with your location? आपका contact सेव करने में is there anything that relates with location? Location का कोई use है? Even if some app is offering some special feature कि location based tracking करते हैं, for example if you reach out to a specific destination, एक कॉल अपने आप ही आपके फोन से हो जाएगा, right? These are the advanced features which have started coming in recent smartphones, but क्या ये required है? How difficult is it to make that call yourself? It will hardly take like 10 seconds. 10 सेकंड का काम है and you are giving your location details to Google every second. Every second. Now, why does the SMS permission is required for Google Contacts? Fine, SMS में आपका contact name visible होता है. So, it might require Google Contacts access. That's fine. नाउ सी, द क्वेश्चन हियर इज कि आपको डिसाइड करना है कि आपके ऐप्स को आपको क्या डेटा देना है क्या नहीं देना। नाउ दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि सब कुछ कलेक्ट किया जा रहा है बाय डिफॉल्ट, बट यू आर इन कंट्रोल, यू आर स्टिल इन कंट्रोल। वी हैव नॉट रीच्ड दैट टाइम जहां पे वी शुड कॉल कि आपके पास आपके डेटा का कंट्रोल नहीं है। ऑफ कोर्स देयर आर सिनेरियोज जहां पे आपके पास कंट्रोल नहीं है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस जहां पे हमें एज अ जनरल पर्सन आप अपने डेटा को कंट्रोल कर सकते हो। नाउ स्टार्ट यूजिंग दिस बिहेवियर, इट्स माय सजेशन। आपके फ़ोन पे काफ़ी सारे ऐप्स इंस्टॉल्ड हैं, गो टू द परमिशंस, चेक इट आउट कि उसको क्या क्या परमिशन ग्रांटेड है, क्या उसको चाहिए, इज देयर अ नीड, नो, देन रिमूव दैट परमिशन। उस परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, डोंट लेट दैट एप्लीकेशन और दैट कंपनी कलेक्ट द डेटा फ्रॉम यू जो उसको रिक्वायर्ड नहीं है। नाउ सम अदर सिनेरियोज जहाँ पे आपका डेटा कलेक्ट होता है, आप सब वेबसाइट्स एक्सेस करते हो,
कोई ना कोई शॉपिंग वेबसाइट्स पे जाते हो, ऑनलाइन गेम्स भी खेलते हो, इनफैक्ट ब्राउजर्स पे, स्मॉल गेम्स आई एम टॉकिंग अबाउट, सोशल मीडियाज पे जाते हो, बहुत सारे जगहों पे जाते हो। आपने एक चीज़ नोटिस करा होगा, मे बी शायद मोस्ट ऑफ यू हैव वुड हैव नोटिस दिस, कि आप फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट पे जाते हो एंड यू सर्च फॉर अ प्रोडक्ट, उसके बाद आप सोशल मीडिया पे आते हो और आप सर्च इंजन्स पे जाते हो, यू विल सी दैट आपको उन्हीं प्रोडक्ट्स की ऐड आ रही है जिसको आपने सर्च किया था थोड़ी देर पहले। यू हैव सर्च इट ऑन फ्लिपकार्ट फॉर एग्जाम्पल, नाउ यू आर ऑन फेसबुक। नाउ फ्लिपकार्ट फेसबुक को डेटा तो डेफिनेटली शेयर नहीं कर रहा। इन लीगल टर्म्स इट इज नॉट शेयरिंग डेटा, वी रियली डोंट नो कि बैकएंड पे वो क्या कर रहे हैं, बट स्टिल फ्रॉम व्हाट दे क्लेम दे डू नॉट शेयर द डेटा। जितना वो बताते हैं उसके अकॉर्डिंग वो डेटा शेयर नहीं करते। बट हाउ इज इट पॉसिबल कि आप फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग कर रहे थे और आप फेसबुक पे वो प्रोडक्ट का ऐड देख रहे हो और सिमिलर प्रोडक्ट का ऐड देख रहे हो? नाउ देर इज समथिंग रनिंग इन योर सिस्टम जो ये डेटा फेसबुक को प्रोवाइड कर रहा है। वी कॉल इट एज ट्रैकर्स। आपके वेब ब्राउजर्स में एक ट्रैकर का कॉन्सेप्ट है। ट्रैकर्स आर बेसिकली अ सॉफ्टवेयर, यू कैन से इन अ लेमैन टर्म, जो कि आपको आपकी सारी ऑनलाइन एक्टिविटी जो आप उस ब्राउजर पे कर रहे हो उसका एक ट्रैक बनाता है, वो डेटा लॉग करता है, स्टोर करता है, और वो डिफरेंट वेबसाइट्स को वो डेटा प्रोवाइड करता है जो उससे वो डेटा परचेस कर रहे हैं। नाउ ट्रैकर्स आर ओन्ड बाय कंपनीज जो कि डेटा सेल करते हैं। नाउ लाइक आई सेड, आपने कोई लेट्स से स्मार्टफोन सर्च किया ऑन फ्लिपकार्ट, आप गए फेसबुक पे, नाउ यू आर स्टार्टिंग सीइंग द एड फॉर दैट सेम स्मार्टफोन और मे बी दूसरे स्मार्टफोन्स, बिकॉज जो प्रोडक्ट आपने सर्च किया इट हैज सम कीवर्ड्स एसोसिएटेड, स्मार्टफोन, एंड्रॉयड, आईओएस। नाउ जो भी आपके कीवर्ड्स का कलेक्शन है जो ट्रैकर्स लॉक कर रहा है, आपको उसके बेसिस पे एड्स दिखाने शुरू करते हैं। नाउ ठीक है, यू विल से कि अच्छा है, मुझे एड्स दिखा रहे हैं, आई डोंट नीड टू सर्च, मुझे शायद कुछ अच्छा ऑफर मिल जाए, दैट्स फाइन। बट ये तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। यू कैन इमेजिन कि बैकएंड पे और क्या डेटा लॉग होता है। ट्रस्ट मी, इवन योर कॉन्वर्सेशंस जो आप फेसबुक पे अपने किसी फ्रेंड से कन्वर्सेट कर रहे होगे, आप उनसे मैसेज पे बात कर रहे होगे, इवन दोज आर बीइंग लॉग्ड, दोज आर बीइंग सोल्ड आउट। ऑफ कोर्स किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके पूरे मिलियंस ऑफ चैट्स को बैठ के कोई पढ़ सके, टेक्निकली नॉट पॉसिबल। बट देर आर सम सिस्टम्स जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे बनाए गए हैं जो आपके चैट्स को प्रोसेस करते हैं यूजिंग सम रूल्स प्रोवाइडेड। नाउ एक एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल यूएस का इलेक्शन, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू वुड हैव हर्ड, एक कंपनी है कैम्ब्रिज एनालिटिका, इट्स अ यूरोपियन कंपनी। यूएस का इलेक्शन हुआ था, दिस लास्ट इलेक्शन जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने जीता था। नाउ देयर इज अ थ्योरी दैट डोनाल्ड ट्रंप ने इस यूरोपियन यूनियन की कंपनी को विच इज कैम्ब्रिज एनालिटिका काफी पैसे दिए थे, इन इन मिलियंस एंड बिलियंस। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने फेसबुक के साथ टाई अप किया था, और एक स्पेसिफिक रीजन जो कि यूएस का रीजन था जहां डोनाल्ड ट्रंप अपने कैंपेन्स कर रहे थे फॉर इलेक्शन, वहां पे सोशल मीडिया पे पब जो इंडिविजुअल्स थे, जो सिटीजन्स थे यूएस को, उनको इन्फ्लुएंस किया था बेसिस ऑन देयर बिहेवियर, उनके इंटरेस्ट, उनकी पॉलिटिकल इंप्रेशंस। वो लेट्स से फॉर एग्जांपल गूगल पे सर्च कर रहे हैं गुड वर्क ऑफ डोनाल्ड ट्रंप या गुड वर्क बाय ओबामा, उन सब कीवर्ड्स को वो प्रोसेस करता था एंड इट यूज टू डिसाइड कि हु इज इन फेवर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप और कौन है फेवर में बराक ओबामा, हु इज द कॉम्पिटिटर फॉर डोनाल्ड ट्रंप। नाउ सिंस दिस कैंपेन वाज स्पॉन्सर्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप, ऑफ कोर्स कैम्ब्रिज एनालिटिका का काम था कि जो भी इंडिविजुअल बराक ओबामा के फेवर में है उनको टर्न करना टुवर्ड्स डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने उनकी बिहेवियर एनालिसिस करे। अब फेसबुक ने क्या किया साथ ही साथ कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ टाई अप में, कि उनको फेक वीडियोस, फेक न्यूज़, कुछ पॉलिटिकल वीडियोस ऐसे दिखाए जिससे लोगों की इंप्रेशन डोनाल्ड ट्रंप के लिए बढ़ जाए, और कुछ ऐसे वीडियोस, कंटेंट ऐसे भी आए जिसकी वजह से बराक ओबामा की इंप्रेशन घट जाए लोगों में। नाउ दिस वाज ऑल अ पेड कैंपेन, इसकी कोई रियलिटी के साथ लिंक नहीं था, सारा कुछ जो था वो सारा फेक था। मोस्ट ऑफ इट वाज फेक, नॉट नॉट सारा कुछ फेक था, बट ऑलमोस्ट सारा कुछ फेक था। इट वाज लाइक मैनिपुलेटिंग ह्यूमन माइंड्स। अब ये सारा डेटा कैसे आया, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट आई एक्सप्लेन्ड, ये बहुत डेप्थ में है। और जो भी मतलब आप एक्टिविटी कर रहे हो ऑनलाइन, इट इज ऑल बीइंग ट्रैक्ड, ऑल बीइंग लॉग्ड एंड ऑल बीइंग सोल्ड आउट। मे बी हो सकता है आप ये जो एग्जांपल मैंने दिया आपको यूएस इलेक्शन का, दिस माइट आल्सो हैपन इन इंडिया। नाउ डू यू वांट एनीवन टू मैनिपुलेट योर थॉट्स? क्या आप चाहते हो आपका कोई थॉट्स मैनिपुलेट करे? नो। नाउ
Should we stop browsing websites? No, of course not. That's not what I'm trying to explain you. There are ways जिससे आप अपने आप को इन चीज़ों से बचा सकते हो. You can protect your data from being sold out. You can protect yourself from being manipulated. How's that done? Now the question is, we'll come to that later. Now let's talk about some content जो कि आपको basically free में मिलता है. Let's talk about torrents. In teenagers, most of you would be using uTorrent for getting the content. Movies उठा लिए pirated, crack games उठा लिए, crack softwares उठा लिए. Many of you would have done that, and many of you would be doing it. So क्या ये content really free है? Of course you're getting it for free, but क्या ये free है? Why are they providing it for free? क्यों दे रहे हैं आपको फ्री? करेक्ट. कभी कभी सोचा आपने कि जिस मूवी का कॉस्ट, फॉर एग्जांपल अगर आप थिएटर में जाते हो, यू हैव टू पे 200 300 और वट एवर, आपको टोरेंट पे नेक्स्ट वीक से मिल जाता है फॉर फ्री. क्या रीज़न है उन मूवीज़ को फ्री में मिलना? थाउजेंड्स के सॉफ्टवेयर्स आपको टोरेंट पे फ्री में मिलते हैं क्रैक किए हुए, ताकि आपको लाइसेंस परचेज नहीं करना पड़े. क्यों फ्री मिलता है? किसी ने इतना मेहनत करा है उस ऐप को क्रैक करने के लिए, वो अपना इतना एफर्ट किया हुआ सॉफ्टवेयर आपको फ्री में क्यों दे रहा है? You'll have to think about it now. एक्चुअली उसका कॉस्ट क्या है? इट्स डेफिनेटली नॉट फ्री. नाउ उसका कॉस्ट क्या है? ऑफ कोर्स इट्स नॉट द मनी दैट यू आर पेइंग देम. आप उसको कोई पैसे नहीं दे रहे डाउनलोड करने के लिए, बट यू आर स्टिल पेइंग अ कॉस्ट. नाउ व्हाट्स दैट कॉस्ट? द कॉस्ट इज योर सिक्योरिटी, योर privacy. आप जितने भी सॉफ्टवेयर्स या ये सब डाउनलोड करते हो, मीडिया कंटेंट्स, मूवीज, वीडियोस, ऑडियोज, एप्लीकेशंस, इवन स्मार्टफोन के एप्लीकेशंस आते हैं क्रैक्ड. पबजी खेलते होंगे बहुत लोग. आई कैन सी इन द चैट मेनी ऑफ यू आर टॉकिंग अबाउट पबजी. आई एम ऑल्सो अ पबजी प्लेयर, सो या. नाउ आप पबजी खेलते हो, आपने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा. सम प्लेयर्स यूजेस हैक्स, कोई क्रैक्ड एप्लीकेशन यूज कर रहा है, a lot of things, right? क्या वो फ्री है? इट्स नॉट फ्री. उसके पीछे बहुत सारे ऐसे मालवेयर्स हैं, ऐसे वायरसेस हैं, ऐसे स्पाईवेयर हैं, रैंसमवेयर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो उस ऐप या उस मीडिया फाइल या उस सॉफ्टवेयर के साथ एम्बेडेड आता है. एम्बेडेड एज इन अटैच्ड आता है. आप जब उनको रन करते हो, आप जब उनको यूज़ करते हो, बहुत सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर्स पे या आपके मोबाइल्स पे बैकएंड में चलती हैं जो आपको कभी सामने से दिखाई नहीं देंगी, आपको पता नहीं चलेगा. बट वो बैकएंड पे आपका डेटा ले रहे हैं. वो डेटा, जिसने भी ये वायरस बनाया है या जहां भी ये डेटा सेंड करने के लिए कॉन्फ़िगर किया है वो वायरस को, वहां पे आपका डेटा सेंड कर रहे हैं. नाउ इट कैन बी एनीथिंग. इट इज़ नॉट लाइक कि आपकी बस ऑनलाइन एक्टिविटी ट्रैक कर रहा है वो. इट कैन बी योर फाइल्स, इट कैन बी योर पिक्चर्स, इट कैन बी योर वीडियोस, आपके पर्सनल वीडियोस, आपके प्राइवेट वीडियोस, बहुत कुछ रखते हैं आप अपने कंप्यूटर्स में. नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, आप रखते हो. एंड इट इज़ टोटली ट्रांसपेरेंट. नाउ द थिंग इज, अगर वो डेटा कोई और कॉपी कर ले या अपने पास ले ले और उसका मिसयूज करेगा, now that's a cost, and I think that's not a cost that I will pay for free content. Instead, I will go to a theater and I'll watch the movie by buying a ticket, or I'll purchase an application. Correct. Now you have been doing this, and it's like आपको पता नहीं है कि इसके पीछे क्या है, and some of you may also be aware of कि इसके पीछे क्या है, but still you are doing it. Now it's your call that आपको ये डेटा उनको प्रोवाइड करना है, या यू वांट टू बी कीपिंग योर डेटा प्राइवेट. आपको अपना आपको अपना डेटा प्राइवेट रखना है, आपको अपनी privacy मेंटेन करनी है. सो we just talked about it in very layman's. बहुत कुछ है. We'll discuss this later. Now let's talk about a brief on smartphones. आप smartphones यूज करते हो, आप applications यूज करते हो smartphones पे. Where are you getting these apps from? आप ये apps mostly कहाँ से डाउनलोड करते हो? प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, iOS यूजर्स ऐप स्टोर. कुछ ऐसे भी यूजर्स हैं जो ये एप्लीकेशंस अनऑथराइज सोर्सेज से डाउनलोड करते हैं. फॉर एग्जांपल, ऑनलाइन अगर आप गूगल करेंगे, आपको बहुत सारे एप्लीकेशन स्टोर्स मिल जाएंगे जहां से आप ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो. इट्स लाइक प्ले स्टोर पे वो एप्लीकेशन शायद ना भी मिले आपको, या हो सकता है प्ले स्टोर पे वो एप्लीकेशन पेड हो. बट ऐसे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऐप स्टोर्स हैं ऑनलाइन जहां से आप ये ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो. नाउ अगेन द सेम क्वेश्चन, अगर वो ऐप प्ले स्टोर पे पेड है और आपको इस स्टोर पे फ्री में मिल रहा है, वाई आर दे प्रोवाइडिंग इट फॉर फ्री? उसके पीछे उनका कॉस्ट है. दे आर परचेजिंग इट, दे आर देन प्रोवाइडिंग यू फ्री में, तो वो ऐप उनको भी नहीं मिल रहा. नाउ वाई आर दे बियरिंग द कॉस्ट? वो कॉस्ट बियर नहीं कर रहे, कॉस्ट आप बियर कर रहे हो. एक 1000 रुपीज के एप्लीकेशंस के लिए अगर आप अनऑथराइज्ड ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हो कंटेंट, और आप उसको लेट्स से एक महीना भी यूज किया आपने, इफ यू हैव यूज्ड इट इवन फॉर अ मंथ,
जो डेटा आपके पास से सेल आउट हुआ है, दैट कॉस्ट थाउजेंड्स, थाउजेंड्स फॉर एप्लीकेशन ऑफ 1000, you have been costed for like 5000, 10,000, anything. You cannot even, calculate the price of your data. आपका डेटा वैल्यूलेस है, इट्स लाइक प्राइसलेस, आप उसका प्राइस नहीं लगा सकते. बट दोज आर बीइंग सोल्ड आउट एंड दैट्स योर कॉस्ट. दैट इज समथिंग दैट यू आर पेइंग, आप पे कर रहे हो अपना डेटा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऐप स्टोर्स. आपको मैंने बोला अनऑथराइज सोर्सेज से डाउनलोड नहीं करने को, दैट्स फाइन. आप बोलते हो मैं प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लूंगा. आर द ऑथराइज प्ले स्टोर इवन सिक्योर? क्या वो सेफ हैं? कैन यू ट्रस्ट देम? द आंसर इज वी डोंट नो. We really don't know, and that's the fact. We don't know if they are safe or not. Why am I saying that is, आप न्यूज़ पढ़ते होगे. आई डोंट नो इफ यू हैव सीन दीज रिसेंटली, बट इन द लास्ट 3 मंथ्स आई विल से, गूगल ने एटलीस्ट 4 बार अपने प्ले स्टोर से बल्क में एप्लीकेशंस रिमूव करे हैं. स्टार्टिंग विद 85 एप्लीकेशंस, 30 एप्लीकेशंस, समटाइम 11 एप्लीकेशंस, समटाइम 25 एप्लीकेशंस. ये सारा कुछ रिमूव किया है. नाउ गूगल स्टोर जो कि आपका प्ले स्टोर है, उसकी पॉलिसी है वेन एवर यू वांट टू पब्लिश एन ऐप, या कोई भी ऐप पब्लिश करता है, they have to keep the source code uploaded on the Google Play Store. आपको अपना source code देना पड़ता है गूगल को. उनके सिक्योरिटी इंजन्स हैं जो उस एप्लीकेशन को, उस कोड को स्कैन करते हैं कि इसमें कोई मलिशियस चीज़ें नहीं हैं जो आपके यूजर्स को नुकसान पहुंचाएं, उनका डेटा चुराएं, या जो भी गलत चीज़ें होती हैं. उसके बाद भी दीज एप्स वेयर पब्लिश्ड ऑन प्ले स्टोर. यू कैन इमेजिन कि दुनिया में कुछ भी 100% सिक्योर नहीं है. करेक्ट. तो ऐसे भी एप्लीकेशंस प्ले स्टोर पे हैं जो पब्लिश कर दिए गए गूगल के चेक्स के बाद भी, जो आपका डेटा चुराते थे या कुछ भी आपके फ़ोन पे गलत करते थे, जिसकी अथॉरिटी उनके पास नहीं होनी चाहिए थी. गूगल स्लोली उनको रिकग्नाइज करता है एंड रिमूव करता है. नाउ यू कैन इमेजिन, अगर गूगल इतने ऐप्स रिमूव कर रहा है तो इट डजंट मीन कि बाकी ऐप्स सेफ हैं. इट इज जस्ट दैट दे हैव नॉट बीन आइडेंटिफाइड येट. वो अभी पकड़े नहीं गए हैं, एंड दे कैन बी आइडेंटिफाइड एनी टाइम सून इन फ्यूचर, और मे बी they don't even get recognized. We never know. So that's why we don't really know if app stores are safe. So that brings to a question कि क्या एप्लीकेशन डाउनलोड ही ना करें? डेफिनेटली नॉट. ऑफ कोर्स स्मार्टफोन का एरा है, इट्स लाइक अ डिजिटल एरा. You cannot live without applications. That's fine. Now, some of you will be thinking, we are using iPhone. It is not that the iPhones are safe. It is similar to Android. The only difference is Android is an open source application or a platform. Open source का basically मतलब होता है anything जिसका सोर्स कोड या जिसका बैकएंड, जो उसके पीछे लिखी गई चीज़ें हैं, राइट, वो पब्लिकली अवेलेबल हैं फॉर एवरीवन टू कम एंड सी एंड चेक फॉर योर सेल्फ. यू कैन सी फॉर योर सेल्फ कि क्या एप्लीकेशन है, उसका सोर्स कोड क्या है, हाउ इज इट रनिंग, क्या चल रही है चीज़ें पीछे बैक एंड पे एंड ऑल दैट. So there are millions and millions of mind, in fact the whole world, looking at Play Store applications. उनके applications पे पूरी दुनिया का नज़र है. वो देख सकते हैं कि क्या चल रहा है इनके पीछे, क्या कोड लिखा है, एंड सारा कुछ. Now that is why Play Store पे इतने applications report होते हैं, these are malicious, इनको remove किया जाता है, and it is so proactive. But on iOS, हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू सी कि कोई ऐप बैन हुआ है ऐप स्टोर पे? मोस्टली ऐप्स जो एक बार आ गए ऐप स्टोर पे वो बैन नहीं होते, बहुत रेयरली. नाउ दिस डेटा दैट आई एम प्रेजेंटिंग यू ऑन द स्क्रीन, एप्पल रिमूव 17 apps, again 17 apps, and 18 apps. All these are three different instances जहाँ पे एप्पल ने अपने ऐप स्टोर से एप्लीकेशंस रिमूव करे हैं. बट दिस डेटा इज फॉर लास्ट 1 year. जहाँ पे गूगल पे लास्ट 3 मंथ्स में अप्रॉक्सीमेटली 200 एप्लीकेशंस रिमूव हुए थे, वहाँ पे ऐप स्टोर पे in last 1 year it is hardly like 50 applications. Now tell me yourself कि जो एप्लीकेशन आपको ऐप स्टोर पे मिलता है, क्या वो जो आपको प्ले स्टोर पे मिलता है, क्या वो ऐप स्टोर पे नहीं है? आपको अगर व्हाट्सएप प्ले स्टोर पे मिल रहा है, व्हाट्सएप ऐप स्टोर पे भी है. टिकटॉक, अ गुड एग्जांपल इन चैट, आपको ऐप स्टोर पे भी मिलता है, प्ले स्टोर पे भी मिलता है, राइट. नाउ ड्यू टू द सेंटिमेंट्स विद चाइना, अभी इंडिया ने बैन किया है. बट व्हाट टिकटॉक इज डूइंग इन द बैक एंड, टिकटॉक हमेशा से ही डेटा चुराता आया है. एंड एवरी मोस्ट ऑफ द चाइनीज ऐप आर डूइंग इट. न्यूज आप डेली देखते होगे, एंड यू कैन सी फॉर योरसेल्फ कि इट इज नाउ हाईलाइटेड दैट चाइनीज ऐप आपका डेटा चुराते हैं. नाउ द हार्ड फैक्ट इज, सिर्फ चाइनीज ऐप आपका डेटा नहीं चुराते.
इट वॉज बैंड बिकॉज ऑफ द सेंटिमेंट विद चाइना। चाइना के साथ जो अभी हमारा सिचुएशन है उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम 57 और वट एवर द काउंट इज चाइनीज ऐप्स ब्लॉक करेंगे, बैन करेंगे। नाउ इट इज ऑल्सो विथ अदर ऐप्स, यूएस के, यूरोपियन यूनियंस एंड एन एंटायर वर्ल्ड, जहां भी एप्स पब्लिश्ड हैं, जहां के भी वो एप्स हैं, सब डेटा ले रहे हैं। इट्स ऑल्सो फॉर इंडियन एप्स। आपने देखा था अभी एप्पल का ही आप देख लो, गुजरात बेस्ड कंपनी जिनके 17 एप्लीकेशंस प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर से रिमूव किए गए थे। नाउ टेल मी दिस, ये सारे 17 एप्लीकेशंस, आई विल नॉट टेक द नेम एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट आईफोन यूज मत करो, नो, इट्स योर चॉइस, इट्स टोटली योर्स, बट यू शुड बी अवेयर कि मैं जो यूज कर रहा हूँ उसका कॉस्ट क्या है, व्हाट एम आई पेइंग दैट फॉर। एप्पल के फोन्स एक्सपेंसिव हैं, एंड्रॉयड के फोन्स कंपेरेटिवली चीपर हैं, बट इट्स लाइक आप एप्पल चूज चूज करो, आप एंड्रॉयड चूज करो, इट्स टोटली योर कॉल। डेटा तो दोनों में ही चोरी हो रहा है। इट्स नॉट लाइक कि एंड्रॉयड वल्नरेबल है और आप आईओएस सेफ है, इट इज नॉट दैट। दोनों ही वल्नरेबल हैं, एंड इट इट टोटली डिसाइड्स कि आप अपने डेटा को कैसे सिक्योर करते हो। आप जो एक्शंस एंड्रॉयड पे ले सकते हो, आप ऑलमोस्ट सारे एक्शंस आप ऐप स्टोर के लिए भी ले सकते हो ऑन योर आईफोन्स और मे बी मैक्स। नाउ द क्वेश्चन इज कि बाकी एप्लीकेशंस भी अगर डेटा ले रहे हैं, देन हाउ हाउ कैन वी सिक्योर दैट? हम कैसे अपना डेटा सिक्योर करें? और क्या हम एप्लीकेशंस यूज करना ही बंद कर दें? लाइक आई सेड, नो, एप्लीकेशंस यूज करना बंद नहीं करेंगे, बट नाउ गेट बैक टू दैट स्क्रीनशॉट जो मैंने आपको शो किया था, गूगल कॉन्टैक्ट्स, परमिशंस। सारे एप्लीकेशंस एंड्रॉयड हो या आईफोन पे रन करते हो, उन सबको परमिशन एक्सेप्ट कराना होता है, उन सबको आपको परमिशन ग्रांट करना पड़ता है। नाउ मोस्ट ऑफ दीज एप्लीकेशंस जो आपके फोन में प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, व्हेन आई से प्री इंस्टॉल्ड, जब आप फोन परचेस करते हो जो भी एप्लीकेशंस आपको उसमें पहले से इंस्टॉल्ड मिल रहे हैं आर दोस प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस। आप एक बार ही चेक करो जाके कि उनको क्या क्या परमिशंस दिए गए हैं। अगर आपको लगता है ये परमिशन यूजफुल नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, रिमूव कर दो। हो सकता है कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होंगे जिनके कुछ फीचर्स चलने बंद हो जाएं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल पेटीएम है, पेटीएम में आप ट्रांजैक्शंस करते हो, आप पैसे भेजते हो, पैसे रिसीव करते हो, इनफैक्ट शॉपिंग भी करते हो, पेटीएम रिचार्जेस करते हो। नाउ टेल मी दिस, आपने पेटीएम जब इंस्टॉल किया, पेटीएम ने कुछ परमिशंस रिक्वेस्ट करे आपसे, एसएमएस का रिक्वेस्ट किया, डेटा का रिक्वेस्ट किया टू स्टोर डेटा ऑन योर फोन, लोकेशन का रिक्वेस्ट किया, बहुत सारे परमिशंस रिक्वेस्ट करे, राइट? नाउ टेल मी दिस, अगर मैं उसको एसएमएस का परमिशन देता हूँ, एसएमएस का परमिशन लेने के बाद पेटीएम करता क्या है, व्हाट पेटीएम क्या बताता है कि क्यों मुझे एसएमएस का परमिशन चाहिए? पेटीएम सेज कि अगर आप मुझे एसएमएस का परमिशन देते हो, मैं आपकी ओटीपी डायरेक्टली पिकअप कर लूंगा और वहां पे फीड कर दूंगा, आपको एसएमएस खोल के ओटीपी नहीं देखना, वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। इट इज लाइक अ कन्वीनियंस टू यू। नाउ देर इज अ सेइंग इन सिक्योरिटी इंडस्ट्री कि कन्वीनियंस is not free. Convenience comes with a cost, and convenience is inversely proportional to security. Now tell me this, आपको एक एसएमएस जो कि आपको हार्डली एक नोटिफिकेशन पैनल पे मिल जाता है, and it is like mostly 6 to maximum 8 digits of OTP. How hard is it to remember and feed that manually into your application? पेटीएम हो या कोई भी एप्लीकेशन हो जहाँ पे आपको ओटीपी डालना है, how hard it is. Now a question is कि इन permissions को कैसे remove करें? Go to the settings of your application, Android ho, iPhone ho, go to the app section, manage applications, go to the permissions section, वहाँ पे manage applications में आपको permissions का मिलेगा। The settings might be a little different in some phones, सबके version अलग हैं, सबका layout अलग है, but mostly it is there in your settings option। settings के अंदर applications का option आता है, applications के अंदर permissions का option मिलेगा आपको। If you don't see permissions as a separate section in your settings, आप application को long press करो, वहाँ पे एक option आएगा app info। ऐप इन्फो पे जाओ, ऐप इन्फो में आपको परमिशंस का टैब मिलेगा, परमिशंस पे क्लिक करो, आपको दिख जाएगा वहाँ पे कि उस एप्लीकेशंस को क्या क्या परमिशन ग्रांटेड है, क्या क्या डिनाइड है। आप उसको अपने अकॉर्डिंग यूज करो। डोंट लेट द ऐप डिसाइड कि उसे क्या डेटा चाहिए। यू शुड बी द वन डिसाइडिंग कि आपको उस ऐप को क्या डेटा देना है, किस चीज़ का एक्सेस देना है, लोकेशन का देना है, नहीं देना। नाउ फ्रॉम माई सेंस ऑफ व्यू, पेटीएम को मेरा लोकेशन नहीं चाहिए, मुझे नहीं देना पेटीएम को अपना लोकेशन। So I have denied the location permission for Paytm. I'm just giving an example. So decide for yourself आपको क्या डेटा उस एप्लीकेशन को देना है, क्या नहीं देना है। So yeah, now we have discussed this in length ki what can we do about it. It's all about permissions. There are few more things that you can do about it.
हाउ मेनी ऑफ यू हैव शेयर इट? और नाउ नाउ सिंस इट इज बैंड, हाउ मेनी ऑफ यू हैड शेयर इट? कितनों के पास आपके पास शेयर इट था इन द पास्ट? मोस्ट ऑफ यू, इफ नॉट मेनी ऑफ यू। सो टेल मी दिस, आप शेयर इट पे कितनी फ्रीक्वेंटली डेटा शेयर करते थे? अपने फ्रेंड्स को डेटा भेज दिया, या मोस्टली अपने फैमिली में या अपने ही दूसरे डिवाइसेस पे डेटा भेज दिया, कितनी फ्रीक्वेंटली करते थे? लाइक वंस इन अ वीक, मे बी लाइक ट्वाइस इन अ वीक, करेक्ट? नाउ टेल मी दिस, शेयरिट को सारे परमिशंस मिले हुए थे एंड शेयरिट आपके फ़ोन पे हमेशा इंस्टॉल्ड रहा है एट ऑल द टाइम। आप यूज़ नहीं कर रहे, आइडल पड़ा है आपके एप्लीकेशंस आपके आपके फ़ोन के अंदर। वो आइडल सिचुएशन में डेटा क्या कर रहा है प्रोसेस, उन क्योंकि परमिशंस उनके पास सारे हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप जब यूज़ कर रहे हो तभी उसके पास परमिशन है, इट्स नॉट लाइक दैट। बैकएंड पे सारी चीज़ें चल रही होती हैं, इट्स नॉट लाइक बैकएंड पे शेयरिट बंद हो गया। इट्स रनिंग इन द बैकएंड, वो पीछे पीछे चल रहा है आपके, बस आपको पता नहीं है। नाउ माई पॉइंट इज कि अगर कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं आपके पास जो कि आप बहुत ही रेयरली यूज करते हो या उतना फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते हो, डोंट कीप इट इंस्टॉल्ड। आपको यूज करना है, इफ इट इज नेसेसरी कि हाँ मुझे यूज करना ही है, इंस्टॉल इट, यूज इट एंड रिमूव इट। इट्स नॉट लाइक अ एसेंशियल ऐप फॉर योर फोन, या आपके लाइफ के लिए वो कोई एसेंशियल ऐप नहीं है। इट्स यूज टू बेसिस। व्हाट्सएप, इट्स एन एसेंशियल नाउ। आप व्हाट्सएप पे तो हमेशा ही रहते हो। फेसबुक, ठीक है, मुझे किसी भी टाइम देखना होता है, दिन में मैं 2 घंटे फेसबुक पे हूँ, 4 घंटे हूँ, कुछ 8 घंटे भी हैं, नाउ इट डिपेंड्स। सो देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन एसेंशियल एंड अ नॉन एसेंशियल ऐप। अगर नॉन एसेंशियल है, डोंट कीप इट इंस्टॉल्ड। जब ज़रूरत है इंस्टॉल करो। मोस्ट ऑफ यू हैव इंटरनेट एक्सेस, आज के टाइम पे तो इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, स्पेशली आफ्टर जियो हैज़ कम। इंटरनेट की तो किसी को दिक्कत नहीं है। And how big is this applications? Maximum 100 MB, 50 MB, 20 MB, even lesser. So these essential applications, इनको इंस्टॉल करके रखो। नॉन एसेंशियल ऐप, इफ यू फील दैट मैं बहुत रेयरली यूज करता हूँ, डोंट कीप इट इंस्टॉल्ड, रिमूव इट। यू डोंट नो व्हाट इट इज डूइंग इन द बैक एंड। इट्स नॉट लाइक कि सारे ऐप ही अनसेफ हैं, बट यू रियली डोंट नो कि किसके घर के कौन से एप्लीकेशन सेफ हैं, कौन से नहीं हैं। So it's better to be safe, right? So uninstall it. It's a recommendation. Now the best part is don't install useless apps. अगर वो ऐप यूजलेस हैं, आपके यूज के नहीं हैं, आपको किसी ने बोला इसको इसको ट्राई कर, या आपने कोई ऐड देखा, आपने इंस्टॉल कर लिया, बट यू डोंट यूज इट एनीमोर, जस्ट रिमूव इट, डोंट कीप इट देयर ऑन योर फोन। लाइक आई सेड, थिंक अबाउट द परमिशंस। परमिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। परमिशंस के बारे में हमेशा सोचना आप किसी भी एप्लीकेशन को यूज करने के लिए। अपडेट योर डिवाइस ऑलवेज। डिवाइसेस जो हैं आपके किसी ना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करते हैं, जैसे एंड्रॉयड, आईओएस, मे बी देर आर सम लिनक्स बेस्ड स्मार्टफोन्स। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बेस्ड भी कुछ स्मार्टफोन्स हैं। यू हैव योर लैपटॉप्स रनिंग मोस्टली ऑन विंडोज, कुछ के लैपटॉप्स लिनक्स भी होंगे इफ यू आर सम लिटिल टेक savvy, कुछ के पास आई मैक्स होंगे, मैकबुक्स होंगे, वो सारे आईओएस पे रन करते हैं, मैक ओएस पे रन करते हैं। तो कीप योर डिवाइस अपडेटेड। हमेशा विंडोज़ अपडेट ऑन रखो। आप अगर आप मैकबुक यूज़र हो तो आपके ऐप स्टोर से अपडेट्स आते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के, कीप दोज अपडेटेड ऑलवेज। एंड्रॉयड के भी अपडेट्स आते हैं, आईफोन्स के भी अपडेट आते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि इन अपडेट से होता क्या है? इट्स नॉट लाइक कि इन अपडेट से सिर्फ आपकी यूज़र इंटरफेस या आपको नए नए फीचर्स मिलते हैं। इफ़ यू लुक एट द डिटेल्स की व्हाट्स इन दिस अपडेट, हर अपडेट पे एक ऑप्शन आता है व्हाट्स इन दिस अपडेट या व्हाट्स न्यू। उसमें आप देखना सिक्योरिटी पैचेस होते हैं मोस्टली। मोस्टली अपडेट्स में सिक्योरिटी पैचेस होते हैं। सिक्योरिटी पैचेस इज लाइक जो भी रीसेंट रिस्क आइडेंटिफाई होते हैं या वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई होते हैं आपके सिस्टम्स में, आपके एप्लीकेशंस में, उन सबको फिक्स किया जाता है। फिक्स इज बेसिकली द सॉल्यूशन टू अवॉइड दैट वल्नरेबिलिटी। आप जब भी अपडेट करते हो अपने डिवाइसेस को, वो सारे सिक्योरिटी पैचेस इंस्टॉल होते हैं आपके फ़ोन पे, सो दैट आपका डिवाइस या आपके ऐप्स फर्दर वल्नरेबल ना रहें उन वल्नरेबिलिटीज से जो पहले थे। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आज से ऑलमोस्ट 6 मंथ्स बैक, और मे बी सम टाइम इवन बिफोर दैट, आपके फ़ोन पे दो ही टाइप के परमिशंस आते थे, अलाउ और डिनाई। नाउ अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कुछ एप्लीकेशंस में आपको परमिशन का एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आता है, अलाउ ओनली व्हेन यूजिंग द ऐप। नाउ दिस इज अ रीसेंट एडिशन टू एंड्रॉयड। कुछ एप्लीकेशंस ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल मैप्स। गूगल मैप्स के पास ये ऑप्शन है, इफ़ यू वांट टू अलाउ द लुक, आप या तो अलाउ कर दो या आप डिनाई कर दो,
या यू हैव अ न्यू ऑप्शन, अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप। उससे क्या होगा, बैकएंड पे वो एप्लीकेशन अगर रन कर भी रहा होगा, देन इट इज नॉट हैविंग एक्सेस टू योर लोकेशन। आप जब तक गूगल मैप्स ओपन करके रखोगे अपनी स्क्रीन पे, तब तक ही गूगल मैप आपका लोकेशन देख पाएगा। अदरवाइज इट विल नॉट बी एबल टू सी। वो बैकएंड पे एप्लीकेशन रन कर रहा होगा बट वो आपका लोकेशन एक्सेस नहीं कर पाएगा। सिमिलरली अगर आपने कोई दूसरा ऐप है, उसको आपने एसएमएस का या उसने आपने उसको कॉन्टैक्ट्स का, फोन का, जिस जिस भी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट का परमिशन आपने उसको अलाउ ओनली वाइल यूजिंग एप्स किया है, वो एप्लीकेशन बैकएंड पे उस परमिशन को यूज नहीं कर पाएगा। इट विल बी लाइक जब आप यूज कर रहे हो ऐप तभी कर पाएगा। नाउ दिस इज नॉट the right solution, but it is better than what we had earlier. So yeah, update your device always. Like I said, remove non-frequent apps. जो आप ज़्यादा frequently use नहीं करते वो हटा दो आप। It's not useful to you, उनको don't keep it installed. And most last but not the least, no unauthorized app, please. You know what the risk is and you know what the cost is. सो स्मार्टफोन्स के बारे में हमने बात कर ली, हमने स्मार्ट डिवाइसेस के बारे में बात कर लिया कि व्हाट इज द कॉस्ट। फ्री तो कुछ भी नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स। फ्री एक्चुअली कुछ नहीं है इस दुनिया में, नथिंग इज फ्री। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, नथिंग इज फ्री। आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहां मैंने इंटेलिजेंस के लिए काम किया है, एंड आई नो हाउ दीज एप्स आर बीइंग यूज्ड टू ट्रैक एवरी इंडिविजुअल। ट्रस्ट मी, दिस इज अ वेरी vast industry of data. And honestly, one more thing I would like to say is data is the next gold. इस डिजिटल एरा में गोल्ड से ज्यादा, गोल्ड और एनी ऑर्नामेंट, उससे ज्यादा प्राइस है डेटा का आपके। इट्स लाइक नेक्स्ट ज्यूल। इससे कॉस्टली चीज दुनिया में कुछ नहीं है। एवरी डेटा, एवरी पीस ऑफ डेटा इज ऑफ अ कॉस्ट एंड ऑफ अ यूज टू समवन इन द वर्ल्ड। आपका हर इंफॉर्मेशन, छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो, कैसा भी हो, प्राइवेट हो, पर्सनल हो, सेंसिटिव हो, पब्लिक हो, कैसा भी इंफॉर्मेशन हो, इट इज ऑफ यूज टू समवन एल्स, जो जिसको शायद आप जानते भी नहीं होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे तो हम सब आते हैं। वी आर लाइक टीनेजर्स, हम सारे ही हैं सोशल मीडियाज पे। कुछ तो ऐसे होंगे जो बहुत बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करते होंगे सोशल मीडिया, फेसबुक एंड ऑल। स्पेशली आजकल लॉकडाउन में तो इट्स लाइक सारा कुछ ही डिजिटल है, एंड मोस्टली यू आर लाइक सिटिंग ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट। और आप लोग तो यंग हो, आप लोगों को और भी ज़्यादा पता होगा। नाउ हम इन सोशल मीडिया साइट्स पे करते क्या हैं मोस्टली? व्हाट डू वी डू? वीडियोस देखते हैं। वॉचिंग इज फाइन, बट आप पोस्ट क्या करते हो? आप उन सोशल मीडिया को प्रोवाइड क्या करते हो? आप अपने ऑलमोस्ट हर इवेंट पे आप कुछ ना कुछ पोस्ट करते हो, चेक इन्स करते हो, आप उस पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रखते हो। अगर आपने अपना फेसबुक प्रोफाइल बनाया, फॉर एग्जांपल फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी हो, आई एम नॉट टारगेटिंग एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सब एक है, सब एक जैसा ही काम करते हैं। थोड़े फीचर्स ऊपर नीचे हैं बट ऑल ऑफ देम आर डूइंग दिस इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। आप उन पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन रखते हो, आप उस पे अपने रिलेशनशिप्स की डिटेल रखते हो, अपने फैमिली की डिटेल्स रखते हो, आप अपने इंटरेस्ट दिखाते हो सोशल मीडिया पे, आप अपने चेक इन्स करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप फॉर एग्जांपल स्टारबक्स गए थे, आपने चेक इन कर दिया, एंजॉइंग कॉफी विद फ्रेंड्स, आपने अपने फ्रेंड्स को टैग कर दिया। चेक इन्स बेसिकली। आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली या जो भी आप कनेक्टेड हो, जिन भी इंडिविजुअल से या जिन भी चैनल से, पेजेस से आप कॉन्वर्सेशन करते हो उनके साथ। फेसबुक मैसेंजर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, राइट? एवरीथिंग इज ट्रैक्ड, ट्रस्ट मी। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का कोई ना कोई मिसयूज कर रहा है, आपके रिलेशनशिप्स और फैमिली की डिटेल्स कोई मिसयूज कर सकता है, आपके इंटरेस्ट को आपके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। देर इज अ, I'll say a concept in layman's term, social engineering. We'll come to that later. Social engineering के बारे में भी section है, and it is very important. It is, trust me, it is very important to know what a social engineering technique is. All these information जो आप social media site पे डाल रहे हो ना, it can be used against you to lure you into a trap। मे बी आपको हनी पॉट करेंगे, हनी ट्रैप करेंगे। इट्स लाइक आप अगर उनको कोई आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मिल गई, बहुत ही लेमैन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कोई पिक्चर डाल दिया एंड योर फैमिली डजंट नो अबाउट योर गर्लफ्रेंड। आपका कोई दोस्त उस पिक्चर को उठा के आपको ब्लैकमेल कर सकता है कि डू दिस फॉर मी, अदरवाइज मैं ये फोटो आपके पेरेंट्स को भेज दूंगा। आई मीन, friend have and all that, it is just a layman example. It's not a cyber crime if they are your friend and they are making fun of it, but yeah, technically it is a crime. They cannot blackmail you for anything. Now you can imagine कि अगर आप ऐसे पिक्चर्स डाल रहे हो और कोई इसका मिसयूज करता है, you know you are
फेलिंग फॉर अ ट्रैप। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर ये सारा कुछ कलेक्ट कर रहे हैं, इज इट लीगल? आर दे कलेक्टिंग इट लीगली? वो जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर क्या कोई लीगल इम्प्लीकेशंस नहीं है उनके ऊपर? द क्वेश्चन इज यस, दे आर कलेक्टिंग इट लीगली। नाउ हाउ दे आर कलेक्टिंग इट लीगली? जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे साइन अप करते हो, फॉर एग्जांपल फेसबुक, या आप किसी भी सोशल मीडिया, किसी भी एप्लीकेशंस पे साइन अप करते हो, एट द टाइम ऑफ साइन अप या रजिस्ट्रेशन यू कैन से, आपको कुछ ऑप्शंस आता है, एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, एक्सेप्ट प्रिवेसी पॉलिसी, एक्सेप्ट यूज एंड टर्म्स एग्रीमेंट्स, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो यूज किए जाते हैं इन अ लीगल वे। नाउ ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड, आप मन में सोच रहे होगे कि इट इज लाइक 700 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, हम कैसे पढ़ेंगे? पॉइंट इज वैलिड, यस, 700 पेजेस का डॉक्यूमेंट आप नहीं पढ़ सकते फॉर एवरी टाइम साइनिंग अप समवेयर। बट द थिंग इज, privacy पॉलिसी बहुत शॉर्ट होता है, एटलीस्ट रीड आउट द privacy पॉलिसी। इफ नॉट, जस्ट गिव एन ओवरव्यू, मे बी गो टू सम साइट्स, यूट्यूब पे आ जाओ आप, यूट्यूब पे कुछ रिव्यूअर्स मिलेंगे आपको जो जो हर एप्लीकेशंस की privacy पॉलिसी, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस, उनके सिक्योरिटी implications के बारे में वीडियोस बनाते हैं। इट्स व्हाट दे डू। एटलीस्ट गेट टू नो अ लिटिल अबाउट इट। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जान पाओगे, नॉट एवरीवन इज सो टेक्निकल, बट या, आप थोड़ा बहुत पता कर सकते हो। फ्रॉम अ जनरल परस्पेक्टिव आप पता कर सकते हो कि व्हाट इज दैट दे विल बी कलेक्टिंग एंड ऑल दैट। कुछ जगहों पे आपको एक और ऑप्शन मिलता होगा, लेट देम कलेक्ट डेटा एनोनिमसली फॉर इम्प्रूवमेंट, या उनके ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए, या फॉर ट्रबल शूटिंग, बहुत सारे स्टेटमेंट्स वो यूज़ करते हैं। नाउ डोंट लेट देम कलेक्ट, वो ऑप्शंस हमेशा बाय डिफॉल्ट चेक्ड आते हैं, यू डोंट रियली डिसेबल इट। आप इंस्टॉल करते हो कुछ, या आप कहीं साइन अप करते हो, यू आर इन अ हरी, नेक्स्ट 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 करते चले गए आप, एंड एवरीथिंग इज डन। नाउ दे यूज द सेम वल्नरेबिलिटी कि आप उन चीज़ों को पढ़ नहीं रहे तो वो आपको बता भी नहीं रहे। द प्रॉब्लम इज, अगर आप उन पे थोड़ा फोकस करोगे, यू विल प्रोटेक्ट योर डेटा। डोंट लेट देम कनेक्ट अनोनिमस डेटा। आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, मोस्टली अनोनिमस डेटा कलेक्शन सॉफ्टवेयर में होता है, ऑन योर एप्लीकेशंस, ऑन योर लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स, हर जगह होता है। नाउ व्हाट शुड वी डू अबाउट इट, एंड व्हाट इट इज बीइंग यूज्ड फॉर? ये डेटा, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और ये डेटा कैसे यूज होता है, किस लिए यूज होता है, कहाँ यूज होता है? बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके मन में। द पॉइंट इज, ये डेटा आपके लिए यूज किया जाता है सोशल इंजीनियरिंग, लाइक आई सेड। सोशल इंजीनियरिंग एक एक्ट है, जहाँ पे हम बेसिकली आपको या किसी भी इंडिविजुअल को, एक एक्सटर्नल पर्सन आपको ट्रिक करता है, आपकी इंफॉर्मेशन जानता है। फॉर एग्जांपल, वो उसे पता है, फॉर एग्जांपल, कि आपको फीफा पसंद है, यू आर अ फीफा फैन, ठीक है। नाउ व्हाट दे विल डू इज दे विल क्रिएट अ फेक प्रोफाइल, दे विल क्रिएट एवरीथिंग ऑन दैट प्रोफाइल विच इज लाइक फीफा का फैन है वो। ओके, मोस्टली हैपेंस विद गर्ल्स, एंड नो ऑफेंस, बट फेक प्रोफाइल से आप बहुत डील करते हो। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अगर आपका इंटरेस्ट पता है किसी को, फॉर एग्जांपल अ फीफा फैन, एंड समवन इज ट्राइंग टू सोशल इंजीनियर यू, आपको आपको किसी ट्रैप में लाना चाहता है, व्हाट दे विल डू इज दे विल गेट टू नो योर इन्फॉर्मेशन, आपके इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल फीफा, फेक प्रोफाइल बनाएगा, क्रिएट एवरीथिंग लाइक अ फीफा फैन, आपको कांटेक्ट करेगा, they will talk about FIFA. I'm a big FIFA fan. I saw you're a FIFA fan. Let's talk. Let's meet. Now you will start to think कि ये भी FIFA fan है and I'm also a FIFA fan. Let's talk. You'll get to discuss with that individual. आप उससे बातें करने लगोगे, आप उससे अपनी information share करने लगोगे. They are collecting it. They are recording it. उसके बाद they will use it against you. Now नॉट एवरी वन इज डूइंग दैट, एंड ये हर किसी के साथ नहीं हो रहा है, बट यू नेवर नो कब आपके साथ होगा। सो इट्स बेटर टू बी अ लिटिल कॉशियस, आप थोड़ा केयरफुल रहो। आप किसी अननोन के साथ आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, आपने अपनी इंफॉर्मेशन पब्लिकली डाल रखी है सोशल मीडियाज पे, इट्स नॉट इवन विथ अ प्राइवेट और लाइक फ्रेंड्स ओनली privacy पॉलिसी, आपने उसको पब्लिक किया हुआ है, anyone can go ahead and read that. When I used to be working for intelligence, हम सोशल मीडिया एनालिसिस करते थे लोगों के ऊपर, जो टारगेट्स होते थे हमारे, फॉर एग्जांपल टेररिस्ट हो गए या कोई भी क्रिमिनल्स हो गए। तो when we can do that, हम उनके सोशल मीडिया से इतनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते थे, then you are just a general person in front of that terrorist. They are trained professionals, उनको पता है कि कैसे they need to hide in the plain sight. But उसके बावजूद if social media is giving us information like that, when you are just a general person, आपके बारे में सोशल मीडिया बहुत कुछ बताता है that you don't even think of. It is not only about public information,
इट इज़ ऑल्सो अबाउट प्राइवेट, क्योंकि अल्टीमेटली वो डेटा फेसबुक या उसके जैसे किसी ना किसी सोशल मीडिया कंपनी के पास है, एंड दे आर शेयरिंग इट विथ एवरीवन। अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ोगे उसमें लिखा होगा कहीं ना कहीं कि यू आर ऑथराइजिंग अस टू शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन विथ आवर ऑथराइज्ड पार्टीज। नाउ दिस इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, उनका ऑथराइज पार्टीज कौन है, दे डोंट टेल अस। लाइक यूएस इलेक्शंस का कैम्ब्रिज एनालिटिका याद करो, वहां के भी यूजर्स उनको लीगली टच नहीं कर पाए बिकॉज दे हैव अग्रीड टू दैट टर्म्स एंड कंडीशंस कि यू आर अलाउिंग अस, आप अलाउ कर रहे हो मुझे टू शेयर योर डेटा विथ माई ट्रस्टेड पार्टीज। नाउ कैम्ब्रिज एनालिटिका फेसबुक का एक ट्रस्टेड पार्टी है, यू हैव गिवन योर कॉन्सेंट एट साइनिंग अप, तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। नाउ सेम थिंग है, अगर आप फेसबुक पे या ऐसे किसी सोशल मीडिया पे अपनी इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, दे आर बीइंग शेयर्ड, एंड इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे फेक प्रोफाइल्स हैं जो लोग यूज करते हैं आपकी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। Individual profiling is almost similar to social engineering. It is just the information gathering part. Profiling means कि मैं आपकी पूरी डिटेल निकालूंगा, आपका बिहेवियर, आप कितनी देर ऑनलाइन आते हो सोशल मीडिया पे, कितने बजे आते हो ऑनलाइन, फॉर एग्जांपल आपको एक वल्नरेबिलिटी बताता हूँ। व्हेन अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हो, यू आर नॉट लाइक अ फ्रेश माइंडेड पर्सन, आप बहुत कुछ ब्लंटली सोच रहे होते हो, ज़्यादा केयरफुल एक्शंस नहीं लेते। इफ आई सेंड यू समथिंग, एक लिंक भेजूं मैं आपको, पोजिंग एज वन ऑफ योर फ्रेंड और वन ऑफ योर नोन पर्सन, कि चेक दिस आउट, और एक लिंक है उस पे, अगर आप नींद में हो या फॉर एग्जांपल आप कंप्लीटली फ्रेश नहीं हो, आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, इसकी ज़्यादा चांसेस हैं। नाउ इफ आई नो कि लेट्स से फॉर एग्जांपल पर्सन एक्स wakes up at 9 a.m. in the morning, mostly I will send him something like this at 8:45 or maybe 9:15, approximately उसी टाइम के आसपास जब आप उठते हो, because you are not paying attention at that time, आप नींद में फोन चला रहे हो अपना, and I'm using that as a vulnerability, as a exploit, and you are more keen to click that link। अगर वही चीज़ मैं आपको 12 बजे भेजूंगा when you are totally freshen up, आप वो लिंक शायद क्लिक नहीं करो, मे बी यू कैन आइडेंटिफाई कि नहीं ये मेरा फ्रेंड नहीं है, दिस इज समवन एल्स, दिस इज नॉट हाउ यू यूज टू टॉक, ये अलग है, ये ऐसे नहीं लिखता वर्ड्स, ऐसे मैसेजेस नहीं करता, you'll think a lot of about it, बट मॉर्निंग में शायद आप नहीं करो। तो दीज आर सम वल्नरेबिलिटीज। इंडिविजुअल प्रोफाइलिंग से आप सोच रहे होगे मैं कितने बजे उठता हूँ, मैं कितने बजे सोशल मीडिया पे आता हूँ, इसका कोई क्या मिसयूज करेगा। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, वी हैव बीन डूइंग दिस एंड दिस इज हैपनिंग फॉर अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स। टीनेजर्स में स्पेशली टारगेट्स करते हैं हैकर्स, बिकॉज दे आर लाइक इन अ एज जहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिलता है इनके बारे में, विच कैन बी मिसयूज्ड, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस इज, वो आपको ब्लैकमेल करते हैं मनी के लिए, बिकॉज यू आर frightened to share it with your family। of course आप अपनी फैमिली से तो छुपा ही रहे हो सब कुछ, even I have done that, so it's not to be something ashamed of, सब करते हैं, this is the age। now the problem is कि अगर उसका मिसयूज करेगा कोई, और अगर आपको ब्लैकमेल करेगा कि मुझे इतने पैसे दो, इज इट द राइट थिंग कि आपको वो पैसे देने चाहिए? नहीं, ऑफ कोर्स देने तो नहीं चाहिए, बट वाई शुड वी गिव देम द ऑप्शन कि आप मुझे इस डेटा से ब्लैकमेल कर पाओ? मुझे आपको वो डेटा देना ही नहीं है जिससे आप मुझे ब्लैकमेल कर पाओ, राइट। सो इंडिविजुअल प्रोफाइलिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। इन्फ्लुएंसिंग, द नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंसिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पता है, आपके इंटरेस्ट पता है, यू कैन यूज और यू कैन रिलेट द सेम एग्जाम्पल ऑफ कैम्ब्रिज एनालिटिका। वहाँ पे जितने भी लोग बराक ओबामा से इन्फ्लुएंस थे, उनको फॉल्सफुली या उनको मैनिपुलेट किया गया, उनको इन्फ्लुएंस किया गया टू ट्रस्ट डोनाल्ड ट्रंप मोर देन बराक ओबामा। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, राइट। अब प्रॉब्लम इज कि आपकी इंफॉर्मेशन से कैसे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है आपको। नाउ लेट्स से आपका कोई फ्रेंड है, या देयर इज एन हैकर हु इज ट्राइंग टू कन्विंस यू टू समथिंग, वो आपके इंटरेस्ट जान करके आपसे दोस्ती करेगा, दे विल गेट क्लोज टू यू, आपका ट्रस्ट गेन करेगा, एंड देन दे स्लोली स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग यू। कुछ ऐसे केसेस मैं आपको बताता हूँ, व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर इंडियन इंटेलिजेंस, हमारे पास काफ़ी ऐसे केसेस आते थे जहाँ पे जनरल स्टूडेंट्स, 10th के, 12th के, समटाइम इवन 8th के, 7th के स्टूडेंट्स को सोशल मीडिया के थ्रू ना इन्फ्लुएंस किया जाता था कि फॉर एग्जांपल आप स्टडीज़ में अच्छे नहीं हो, स्टार्ट यूजिंग दिस मेडिसिन, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। दोज वर बेसिकली ड्रग्स। नाउ दे वर मेकिंग देम अडिक्ट टू दैट ड्रग, और उसके बाद दे द लार्जर ऑब्जेक्टिव वाज कि उसको पहले अडिक्ट करो इससे, एंड देन आई हैव अ पॉइंट टू ब्लैकमेल हिम, और उसके बाद मैं इससे मिसयूज करूंगा, उसको बोलूंगा नाउ सेल दिस ड्रग टू योर फ्रेंड्स।
नाउ डू यू वांट समवन टू डू दिस विथ यू? क्या आप चाहते हो कि आपको कोई ऐसा इन्फ्लुएंस करे? सो थिंक अबाउट इट, आपको क्या डेटा शेयर करना है, किसके साथ करना है, किसे बताना चाहिए, क्या बताना चाहिए। नाउ नाउ अ बिगर क्वेश्चन इज, सोशल मीडिया पे क्या आपने सारे इवेंट्स डालना जरूरी है? आई एम गोइंग समवेयर, आई एम ईटिंग समथिंग, आई एम वॉचिंग समथिंग, क्या वो डालना जरूरी है? इज इट वर्थ इट? आई एम नॉट सेइंग कि कुछ भी मत डालो, डालो, बट देयर शुड बी अ बाउंड्री कि मैं क्या डाल रहा हूँ एंड क्या नहीं डाल रहा हूँ। नॉट एवरीथिंग, योर एंटायर लाइफ शुड नॉट बी ऑन सोशल मीडिया। आपका आपकी पूरी लाइफ, आपकी पूरी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पे नहीं होनी चाहिए। You should have your separate personal life and a separate social life on digital platforms. Now, some of you in this age might not accept this or might not understand this. आप नहीं मानोगे मेरी बातों को, but in the longer run, when you reach to a point in your life जहाँ पे आप इस चीज़ों को realize करोगे, then you'll remember कि this was the right thing and I should have been doing this very since very long time back. आपको ये चीज़ बहुत पहले से करनी चाहिए थी. You will realize this sometime in your life. Trust me on this. Now, always I'm giving an example of, Cambridge Analytica for US election. Netflix पे एक डॉक्यूमेंट्री है, द ग्रेट हैक, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो. You should must watch this documentary. It's not a very long. It's like almost 2 hours and 20 minutes. आपको ये वीडियो देखना चाहिए. ट्रस्ट मी, आपको पता चलेगा कि what you are putting on social media कैसे यूज हो रहा है. दिस इज अ वेरी गुड वीडियो एंड ट्रस्ट मी, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा. देर इज नथिंग रियली टेक्निकल अबाउट दिस. आपको एज अ लेमैन बहुत अच्छे से समझ आएगा. यू शुड गो एंड वॉच दिस. एंड आपको सोशल मीडिया पे क्या जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि क्या हो रहा है एंड कैसे हो रहा है, इस चीज़ का आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा इस वीडियो को अगर आप देखोगे. नाउ ट्रैकिंग इज समथिंग यूजिंग योर एक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया आप कितने बजे उठ रहे हो, क्या कर रहे हो, कितने बजे सोशल मीडिया पे आ रहे हो. आपकी फॉर एग्जांपल अगर आप डेली जिम जाते हो और आप जिम जाके डेली चेक इन करते हो या जिम से एक फोटो डालते हो, वर्कआउट टाइम सेल्फी लेते हो, राइट? एवरीवन डूज दैट. तो होता क्या है बेसिकली, समवन इज लुकिंग ऑन योर प्रोफाइल. आप फोटो डालते हो, सब ट्रैक करता है कोई ना कोई. इफ ऑफ कोर्स समवन इज ट्रैकिंग यू, इट्स नॉट लाइक कि आप डाल रहे हो तो आपको कोई ना कोई देख ही रहा है. नाउ यू, लाइक आई सेड, यू नेवर नो कब आपको कौन देख रहा है, राइट? कब आपको कौन टारगेट कर रहा है. जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो सोशल मीडिया पे, करेक्ट, कोई ना कोई देख रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज प्लानिंग टू किडनैप समवन, जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर आप डेली एक फोटो डालते हो जिम में, फॉर एग्जाम्पल 10 AM इन द मॉर्निंग, दे नो आप 10 बजे जिम में होते हो. सो यू मस्ट बी ट्रैवलिंग बिटवीन 9 to 10 फ्रॉम योर होम टू योर जिम. आई कैन ट्रैक यू. आई कैन सिंपली कैच यू इन बिटवीन योर होम एंड योर जिम. मैं आपको आपके घर और जिम के बीच में कहीं ना कहीं ट्रैप कर सकता हूँ. ऑल दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड एंड आर बीइंग यूज्ड फॉर अ लॉट ऑफ केसेस. फिशिंग. Now this is an interesting term and I am closely related to fishing. होता क्या है fishing? Fishing is basically an art of, kind of a disguise. एक ईमेल हो सकता है फिशिंग, एक एसएमएस हो सकता है, एक व्हाट्सएप मैसेज हो सकता है, एक फेसबुक मैसेज हो सकता है, जिसमें दे विल बी मोस्टली सेंडिंग सम लिंक या फिर सम अटैचमेंट, मे बी लाइक अ वीडियो फाइल, एन एप्लीकेशन, अ सॉफ्टवेयर, कुछ भी हो सकता है. एंड इट विल बी लाइक, वो आपको देखने में लगेगा ये जेन्युइन है, मुझे इस पे क्लिक करना चाहिए, और इट इज आस्किंग मी टू क्लिक. फॉर एग्जांपल, आपको अगर आपकी कोई जीमेल आईडी हैक करना चाहता है, राइट, बेसिकली आपको एक ईमेल आएगा कि योर गूगल अकाउंट इज एट रिस्क, क्लिक हियर टू सिक्योर इट. जैसे गूगल ईमेल्स भेजता है ना आपको, नए लॉगिन करते हो आप तो एक ईमेल आता है, न्यू लॉगिन हैज बीन डन. पूरा उसका एक डिज़ाइन है. सेम डिज़ाइन उठाएंगे वो, आपको एक ईमेल बना के भेजेंगे किसी दूसरी आईडी से, जिसमें लिखा होगा योर ईमेल आईडी इज एट रिस्क या योर पासवर्ड हैज बीन चेंज, क्लिक हियर टू रिपोर्ट. आपको एक लिंक होगा उसमें, आप उस पर क्लिक करोगे, इट विल टेक यू टू अ पेज जो कि आपको बिल्कुल जीमेल ही लगेगा, जीमेल जैसा ही लगेगा. आप उसमें अपने आईडी पासवर्ड डालोगे, आप ये सोच रहे होगे कि मैं जीमेल पे लॉग इन कर रहा हूँ. एक्चुअली इट इज़ नॉट जीमेल. वो जीमेल का एक फेक वर्जन है जहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड आपने अभी अभी डाला और उसको उन्होंने रिकॉर्ड किया. अब उनके पास आपका आईडी पासवर्ड है एंड दे कैन जस्ट लॉग इन टू योर गूगल अकाउंट. दे कैन मिस यूज इट. दे कैन कलेक्ट द डेटा. वो आपके सारे ईमेल्स देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आपके ईमेल से. आपके ईमेल आईडी से आपके फैमिली को कोई दूसरी ईमेल भेज सकते हैं जिससे वो लोग भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएं, राइट? अगर आपको किसी अननोन ईमेल आईडी से मेल आएगा, आप उस पर कम ट्रस्ट करोगे, बट आपके फादर के आईडी से आपको कोई मेल आएगा, ऑफ कोर्स आप ट्रस्ट करोगे. या आपकी टीचर की आईडी से आपको मेल आएगा, आप डेफिनेटली उसको ट्रस्ट करोगे. टीचर की आईडी से आएगा तो लिखा होगा फाइल, एक अटैचमेंट होगी,
उसमें लिखा होगा दिस इज योर असाइनमेंट, क्लिक हियर टू डाउनलोड। आप उसको डाउनलोड करने जाओगे, यू विल फेल फॉर द ट्रैप। बेसिकली दिस इज फिशिंग इन लेमैन, बहुत ही लेमैन में है, हम एडवांस फिशिंग के बारे में आगे बात करेंगे। हनी ट्रैपिंग इज बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशन यूज करके, आपको बात करके, स्लोली एंड स्लोली, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, आपको धीरे धीरे एक ट्रैप की तरफ लाना। फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको ड्रग एडिक्ट का एग्जांपल दिया था, आपको ड्रग एडिक्ट बनाना इज़ अ ट्रैप, ताकि वो आपसे अपना ड्रग बिजनेस आगे करा पाए। और आप यू आर अवेयर ऑफ दिस। आपने कितने देखे होंगे यंगस्टर्स जो ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। इट्स नॉट लाइक दे डू इट बाय देयर विल, उनको ब्लैकमेल किया जाता है। मोस्ट ऑफ देम आर बीइंग ब्लैकमेल्ड। So be a little careful about what you're sharing on social media. That's the real face of social media. एक अलग फेस है जो आप देखते हो, उसके पीछे का एक और फेस है जो कि मैंने आपको अभी बताया। ना यू हैव टू डिसाइड कि इन दोनों के बीच में एक बाउंड्री कहाँ बनानी है और कैसे बनानी है। आई एम नॉट asking you to leave social media. No, please be on social media. You should have a digital social life as well. But decide that boundary. Cyberbullying, an interesting thing, especially at your age. साइबर बुलिंग इज नथिंग बेसिकली आपको टीज करना, आपको हरास करना, बहुत सारी चीजें हैं जो एक यंगस्टर्स या एक इस एज में होता है लोगों के साथ। आपकी कोई प्राइवेट फोटो अगर किसी के पास आ गई, या आपके कोई प्राइवेट कॉन्वर्सेशन आ गया किसी के पास, उसको मिसयूज करेंगे, आपको आपको टीज करेंगे। या हो सकता है आपकी कोई फनी फोटो है, आप उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देंगे, एंड विदाउट योर कंसेंट ऑब्वियसली। और उसके बाद आपको आपको परेशान करेंगे, आपको पब्लिकली डिफेम करेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपकी बेइज्जती करेंगे। आप उनको बोलते रह जाओगे कि इसको हटा दो, बट दे विल नॉट डू दैट। दैट्स बिकॉज दे आर बुलिंग यू। उनका वही काम है। सो आप क्या इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो, अगेन इट इज योर कॉल कि आप बाकी लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। नाउ साइबर बुलिंग इज समथिंग जो हो सकता है आप इन्फॉर्मेशन कुछ शेयर ना करो तो भी होता हो आपके साथ। फॉर एग्जाम्पल किसी सेलिब्रिटी की फोटो उठाकर उसको फोटोशॉप करके आपका फेस लगा दिया, यू नो अब सेलिब्रिटी भी हो सकता है, इट कैन बी एनी वन इन द वर्ल्ड, कुछ किसी भी तरीके की एडिटिंग करके फॉर्ज्ड कंटेंट बना के सोशल मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको बेसिकली हरास कर रहे हैं। नाउ यू कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट इट टू प्रिवेंट इट, इट कैन हैपन टू यू एनी टाइम। आपने अगर कुछ डेटा शेयर ही नहीं किया, इट इज़ नॉट योर डेटा एक्चुअली, तो यू कैनॉट प्रिवेंट इट। नाउ what should we do about cyberbullying? We'll be discussing about this. Cyberbullying के बारे में आपको बता दूं मैं। बेसिकली साइबर बुलिंग में होता यह है कि दे विल आस्क यू कि डू दिस फॉर मी, अदरवाइज मैं ये डिलीट नहीं करूंगा, मेरे लिए ये करो पहले, देन आई विल डिलीट दिस पिक्चर। माइट भी कि आप वो कर दो, उसके बाद भी वो डिलीट नहीं करे, वो फिर बोलेंगे अच्छा ये भी करो, उसके बाद डिलीट करूंगा। यू नो नाउ द थिंग इज, शुड यू डू दैट? No, don't do that. Cyberbullying is a crime, and we have a very strong legal consequences for cyberbullying. अगर आपके साथ कोई cyberbullying कर रहा है, there are few things that you need to do. We'll be discussing exactly what to do. कैसे आप cyberbullying के ऊपर action लोगे? Cyberbullying के ऊपर you should pay a little more attention, because cyberbullying किसी के साथ भी हो सकता है, especially in this age. People who are like in 11th or 12th standard, in a few years you will go to colleges में seniors हो सकता है आपकी bully करेंगे। You should know how to respond to that. It's not like कि cyber bullying अगर कर रहा है कोई, you should not take it casually. It's not a casual thing now. It's a legal offense. अगर मैं आपको बताऊं, साइबर बुलिंग के ऊपर रिसेंटली आईटी एक्ट, जो इंडिया का आईटी एक्ट है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, एंड आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे। रैगिंग फ्री इन्वायरमेंट कॉलेजेस में होता है, स्कूल्स में होता है। इट इज ऑल्सो टू डू विथ द आईटी एक्ट। आईटी एक्ट के अंदर भी साइबर बुलिंग इज लाइक, आपका जो रैगिंग होता है वो डूइंग इट ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म इन अ साइबर वे। सेम चीज़ है, इट्स लाइक दैट इज ऑल्सो अ लीगल ऑफेंस। आप अगर आपको कोई कर रहा है, यू शुड डू लाइक, आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो, इफ़ नॉट कंफर्टेबल आप अपने टीचर्स के साथ शेयर करो, और एटलीस्ट शेयर इट विद समवन। देर आर हेल्पलाइंस जो कि साइबर सेल है, इंडिया का साइबर सेल है, वहाँ रिपोर्ट कर सकते हो आप। देर आर चिल्ड्रन हेल्पलाइन, स्पेशली इफ़ यू आर अ वुमन यू हैव अ वुमेन्स हेल्पलाइन। देर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स और लॉट ऑफ चैनल्स जहाँ पे आप ये सब चीज़ें रिपोर्ट कर सकते हो। इट्स नॉट द ओल्डर टाइम की you do not have a proper IT infrastructure कि आप इन चीज़ों से बच पाओ। The time has changed and you have a lot of things. You can do a lot and you can make an impact on a very large scale. So yeah, we'll cover about cyberbullying in details in the coming slides. Blackmailing is we have discussed कि ब्लैकमेलिंग भी की जा सकती है आपकी यूजिंग सम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आपके बारे में गैदर की गई हो यूजिंग सोशल मीडिया, राइट?
So you can read this banner, think before you act. Now, it is the same thing in a very layman statement जो मैंने आपको बताया. आप जो भी कर रहे हो, nobody is going to stop you from that. It is you. आपको सोचना है, कुछ भी आप कर रहे हो उससे पहले आपको सोचना है कि इससे क्या होगा, इससे क्या फायदा है मेरा, क्या नुकसान है मेरा, इसका क्या मिसयूज हो सकता है, इसका क्या यूज हो सकता है. बोथ इन अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव वे. इट्स नॉट कि आपको सिर्फ नेगेटिव सोचना है. यू शुड ऑल्सो थिंक अबाउट द पॉजिटिव साइड्स. बट या, think about it and make a boundary between your personal life and your social life on a digital platform. अब बात करते हैं हम कुछ कॉमन साइबर अटैक्स और डेटा थेफ्ट की टेक्निक्स के लिए. मोस्टली हमने अभी डिस्कस करा ही था इन सोशल इंजीनियरिंग, फिशिंग, मालवेयर एंड ऑल दैट, बट अब हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में. Social engineering is basically an art of manipulating people, you know, and the whole and the larger objective is कि आप उनको अपने confidential information, personal information share कर दो उनके साथ. It's like especially for girls, for example, अगर आप किसी या for boys fake accounts बना रहे हैं, someone has created a fake account with a girl's name, आपको Facebook पे request भेजा, you know, it's like a girl, and most of the children in this age falls for it. फेक अकाउंट है, दे एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट, फिर वो बातें करना शुरू करते हैं, दे आर लाइक सेंड मी योर पिक्चर. नाउ यूल थिंक अ गर्ल इज आस्किंग मी फॉर माय पिक्चर, आई शुड सेंड इट. आप भेज देते हो उनको. नाउ नाउ बहुत सारी चीजें हैं. फिर वो बोलते हैं, दे टर्न इट टू लाइक अ रिलेशनशिप काइंड ऑफ अ थिंग. फिर वो आपको बोलते हैं मुझे अपना आईडी पासवर्ड दो, आई डोंट ट्रस्ट यू. यू नो हाउ दिस थिंग्स हैपन इन दिस जनरेशन, राइट? वो चीज़ें मत करो आप. इट्स नॉट वेरीफाइड, इट्स नॉट समथिंग. एंड ऑफ कोर्स आप किसी के साथ भी कभी अपना आईडी एंड पासवर्ड शेयर मत किया करो, नॉट इवन योर नोन वंस. योर पासवर्ड, योर आईडी एंड योर पासवर्ड शुड ऑलवेज बी ओनली योर्स. किसी के साथ भी शेयर नहीं करना. नाउ दैट्स अ सजेशन. ओके. जो इंफॉर्मेशन ये क्रिमिनल सीख करते हैं आपसे वो वैरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट ट्रिक्स. जैसे वो आपकी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, वो आपसे आपका पासवर्ड मांग सकते हैं. दे कैन ऑल्सो आस्क यू कि लेट्स चैट ऑन दिस सॉफ्टवेयर. वो आपको एक सॉफ्टवेयर भेज देंगे. यू विल इंस्टॉल इट इन इंटरेस्ट कि मुझे इससे चैट करने को मिलेगा इस सॉफ्टवेयर पे. नाउ इट माइट ऑल्सो बी अ चैट एप्लीकेशन, इट मे नॉट ऑल्सो बी अ चैट एप्लीकेशन. आपने इंस्टॉल कर दिया, इट हैज इंस्टॉल्ड सम मालवेयर, कोई वायरस इंस्टॉल कर दिया आपके सिस्टम पे. नाउ दैट इज डूइंग समथिंग एल्स ऑन योर मशीन जो आपको पता भी नहीं है. इट्स नॉट लाइक कि वो फ्रंट पे काम करता है, इट ऑलवेज वर्क्स एट द बैक. All these are little tricks of social engineering. आपसे the whole objective is कि आप कितनी information उनको share करते हो. वो आपको trick करते हैं, manipulate करते हैं. नेक्स्ट इज फिशिंग. फिशिंग के बारे में हमने अभी बात करा था. इट इज़ अ फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और डेटा सच एज यूजर नेम, पासवर्ड हो गया आपका, आपके क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स हो गए. दिस इज मोस्टली डन बाय डिस्गाइजिंग एज समवन ट्रस्टवर्दी और नोन और लाइक अ ट्रस्टवर्दी सिस्टम. फॉर एग्जांपल, अगर आपको जीमेल से मेल आ रहा है कि योर आईडी हैज बीन कॉम्प्रोमाइज, क्लिक हियर टू चेंज योर पासवर्ड. यू ट्रस्ट दिस सिस्टम विच इज गूगल, राइट? बट वो एक्चुअली गूगल नहीं है. इट इज अ डिस्गाइज इन द नेम ऑफ गूगल. आपने वो लिंक पे क्लिक किया एंड योर आईडी एंड पासवर्ड इज गॉन, राइट? एंड यू मे और मे नॉट इवन रियलाइज दैट. Like you can see, it is typically carried out by spoofing emails या फिर instant messaging पे हो गए. This is like फेक अकाउंट्स पे डायरेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं. फेक वेबसाइट्स पे होते हैं जो कि लेजिटिमेट दिखते हैं. लाइक आई सेड, जहाँ पे आप गूगल का लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल रहे हो, यू विल सी लाइक अ जेन्युइन गूगल पेज, बट वो होता नहीं है. Now I'll show you a phishing email. You can see past some time this has been circulating a lot. कुछ टाइम पहले ये बहुत चला है नेटफ्लिक्स यूजर्स के लिए. नेटफ्लिक्स सफर्ड अ कॉम्प्रोमाइज. नेटफ्लिक्स पे एक हैक हुआ था जहाँ पे उसके यूजर्स की डिटेल कॉम्प्रोमाइज हुई थी. नाउ द कॉम्प्रोमाइज हैड उनके ईमेल एड्रेसेस, यूजर्स के ईमेल एड्रेसेस कॉम्प्रोमाइज हुए थे, पासवर्ड्स नहीं हुए थे. किसी हैकर ने ये एक कैंपेन बनाया जिसपे उन्होंने नेटफ्लिक्स की तरह दिखने वाला एक जेन्युइन ईमेल बनाया जिसमें लिखा है योर अकाउंट इज ऑन होल्ड, प्लीज अपडेट योर पेमेंट डिटेल्स टू कंटिन्यू योर अकाउंट. नाउ देयर इज अ बटन अपडेट अकाउंट नाउ हियर इन द रेड. इफ यू सी, मैक्सिमम यूजर्स जो इसको जेन्युइन समझेंगे वो इस लिंक पे क्लिक करेंगे कि आई एम अ नेटफ्लिक्स यूजर एंड आई वांट माय नेटफ्लिक्स अकाउंट बैक. वो इस लिंक पे क्लिक करेंगे, दे विल लैंड टू अ नेटफ्लिक्स का लॉगिन पेज विच विल बी ऑफ कोर्स अ फेक पेज. उस पर अपना वो आईडी पासवर्ड डालेंगे एंड देयर आईडी एंड पासवर्ड इज गॉन. वो हैकर्स के पास अब आपका आईडी पासवर्ड है एंड नाउ दे कैन एक्सेस योर नेटफ्लिक्स ओरिजिनल अकाउंट.
ना से अगर मेरा नेटफ्लिक्स ओरिजिनल अकाउंट एक्सेस कर भी लिया तो क्या हुआ? देर इज अ चेन ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग इज लाइक अ चेन। एक इंफॉर्मेशन दूसरी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करता है। अगर आपके नेटफ्लिक्स अकाउंट का एक्सेस है, नेटफ्लिक्स पे आपने कोई ना कोई पेमेंट डिटेल सेव किया है, आपका क्रेडिट कार्ड हो गया या आपका कोई पेपाल अकाउंट है या वट एवर पेमेंट इन्फॉर्मेशन, अब वो इन्फॉर्मेशन का एक्सेस आपके हैकर के पास है। Of course, they cannot make transactions outside Netflix, but still आपकी credit card की information है, which is bringing them one step closer to you या one step closer to compromising you. नाउ क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन से हो सकता है किसी ना किसी क्रेडिट कार्ड ऑर्गेनाइजेशन के लीक से वो आपकी बाकी इन्फॉर्मेशन निकाल लें। फॉर एग्जांपल योर मोबाइल नंबर, right? Anything can be extracted out of it. I'll not go into technical details. Not everyone here is so technical, but this happens. Another one is malware. Malware is basically, अगर आपको लेमन में बताऊं, it's like a virus. Any software or a program which is having a malicious intent, किसी भी तरीके का डेटा चुराना हो या कुछ भी हो, there are malwares, and trust me, there are malwares which are not even being detected by antiviruses, even it is a paid or a free. एंटीवायरस भी एक्चुअली में अगर मैं आपको टेक्निकली बताऊं, इट्स अ वायरस। सो इट्स लाइक, अगर आपको पता है हाउ डज अ वैक्सीन वर्क्स, वैक्सीन इज बेसिकली पुटिंग वीकर वायरसेस इन योर बॉडी, एंड वैक्सीनेशन में भी आपके बॉडी को वायरसेस ही इंजेक्ट किए जाते हैं सो दैट योर बॉडी फाइट्स अगेंस्ट इट। सो एंटीवायरस इज सिमिलरली अ वायरस इटसेल्फ, बस उसका जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज इन अ पॉजिटिव वे, इट इज नॉट डूइंग इट मलिशियसली, इट इज डूइंग विथ योर इंटेंट एंड योर एक्सेप्टेंस। इट इज मॉनिटरिंग ऑल द बिहेवियर्स। एंटीवायरस जब आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हो, इट इज लाइक वो सारे प्रोग्राम, सारे एप्लीकेशंस, सब कुछ रीड करता है, सब कुछ स्कैन करता है टू सी कि क्या मलिशियसली चल रहा है और क्या जेन्युइनली चल रहा है। नाउ देर आर हैकर्स जिन्होंने रिसेंटली कितने अटैक्स किए हैं, बिग एंटरप्राइजेस, बिग ऑर्गेनाइजेशंस, और बहुत बड़े बड़े नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज हो गए यूजिंग दीज मालवेयर्स, जिस पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लेवल्स होता है, मच मोर देन जस्ट एन एंटीवायरस। एंटीवायरस से बहुत ऊपर की सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज भी लगी थी, बट इवन दोज वायरस वेर एबल टू बाईपास दैट, उसके बावजूद उन्होंने वो सारा कुछ कॉम्प्रोमाइज किया। सो योर एंटीवायरस इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन, बट येस, फ्रॉम अ जनरल पर्सन परस्पेक्टिव, एंटीवायरस आपके सिस्टम पे होना चाहिए, एंड दैट टू अ पेड वन, नॉट अ फ्री वन। Now, malware is something we know about. There is another kind of a software, we call it ransomware. Ransomware भी एक तरीके का malware ही है. Malware is basically a group of malicious softwares, viruses, malwares, trojans, worms, बहुत सारी चीजें होती हैं. Ransomware is one of those, which is gaining a lot of popularities nowadays. Ransomware बेसिकली एक malicious सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल होता है। द पर्पस ऑफ ransomware इज कि वो आपके डेटा को इनक्रिप्ट करता है, और डेटा इनक्रिप्ट करने के बाद बेसिकली आपको एक पॉपअप मैसेज आएगा कि योर डेटा हैज़ बीन इनक्रिप्टेड। आपको अगर अपना डेटा वापस चाहिए तो पे इतना अमाउंट ऑन ऑन डिफरेंट मोड्स लाइक क्रिप्टो करेंसीज में बोलेंगे आपको पेमेंट करने, या दे विल क्रिएट फेक वॉलेट्स, पेटीएम का वॉलेट, या समटाइम्स इवन कैश। इट्स वेरी रेयर दैट दे हैव आस्क्ड इन कैश, बट कुछ इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे उन्होंने कैश भी डिमांड किया है। मोस्टली इट विल बी लाइक, अब आपको लगेगा मेरे सारा डेटा तो चला गया, नाउ इफ आई वांट दैट डेटा बैक मुझे पे करना पड़ेगा। नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ ब्लैकमेलिंग, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस, अगर रैंसमवेयर से इफेक्टेड है आपका सिस्टम, आप पे कर दोगे, उसके बावजूद आपको आपका डेटा नहीं मिलेगा। दे विल नेवर सेंड यू बैक योर डेटा, इट इज जस्ट अ ट्रैप। आपसे वो पैसे बनाएंगे एंड दे डोंट केयर अबाउट योर डेटा। दिस इज काइंड ऑफ अ स्क्रीनशॉट जो आपके स्क्रीन पे आ सकता है इफ़ यू आर इन्फेक्टेड विद अ रैंसमवेयर। रैंसमवेयर आएगा, ऑफ कोर्स ऐसी ईमेल एड्रेस नहीं आएगी उस पर, बट कुछ अलग सा ईमेल एड्रेस आएगा। उस पर लिखा होगा ऑल योर पर्सनल फाइल्स हैव बीन एनक्रिप्टेड, इफ़ यू वांट योर डेटा बैक यू विल हैव टू पे, कॉन्टैक्ट अस। वो फिर आपसे बातें करेगा, वो बोलेगा मुझे $200 दे दो, मुझे $100 दे दो, या मुझे $1000 दे दो, डिपेंडिंग ऑन कि आप आपका डेटा उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब लेट्स टॉक अबाउट साइबर बुलिंग, राइट? साइबर बुलिंग के बारे में हमने पहले थोड़ी बात करी थी, बट साइबर बुलिंग बेसिकली क्या होता है? साइबर बुलिंग इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू हरास, थ्रेटन या एम्बैरस और टारगेट अनदर पर्सन। आपको हरास करने के लिए, लेट्स से स्कूल लाइफ में बहुत होता है, आपकी किसी से बनती है, आपकी किसी से नहीं बनती है,
कुछ फ्रेंड्स हैं आपके, कुछ फ्रेंड्स नहीं हैं आपके, कुछ आपको परेशान करते हैं। अगर उनके पास आपकी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाए जिससे वो आपको एम्बैरस कर सकते हैं, आपको नीचा दिखा सकते हैं, राइट, वो यूज करते हैं। एंड दिस इज व्हाट साइबर बुलिंग इज। साइबर बुलिंग आपका कोई नोन हो सकता है, आपका कोई अननोन भी हो सकता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज अननोन। इट इज एक्चुअली नोन बट इट इज हार्ड टू आइडेंटिफाई कि हु इज दैट पर्सन। ऑनलाइन थ्रेट्स देते हैं आपको, रूट टेक्स्ट दे सकते हैं आपको, आपके अगेंस्ट कुछ ट्वीट कर देंगे, आपके अगेंस्ट कुछ पोस्ट कर देंगे या मैसेज कर देंगे, एंड विदाउट योर कंसेंट ऑफ कोर्स। साइबर बुलिंग में कुछ फोटोज हो सकते हैं, मैसेजेस हो सकते हैं, पेजेस हो सकते हैं, या ऐसे कुछ भी कंटेंट हो सकते हैं जो आप उनको बोलोगे भी हटाने को वो नहीं हटाएंगे, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू एम्बैरस यू एंड दैट इज व्हाट दे आर गोइंग टू डू। द स्ट्रेस जो आपको मिलता है एक साइबर बुलिंग में, जब आप हरास होते हो, जो स्ट्रेस मिलता है वो आपको बहुत सारे एंग्जाइटीज दे सकता है। इट कैन क्रिएट अ सेंस ऑफ फियर इन यू। आपके मूड के पे इम्पैक्ट डाल सकता है, आपकी एनर्जी लेवल को इम्पैक्ट कर सकता है। यू माइट इवन फील स्लीपलेस। आपके एपेटाइट पे इफेक्ट पड़ सकता है, राइट। बहुत सारे implications हैं अगर आप साइबर बुलिंग फेस कर रहे हो। So it is best to end this as soon as possible. Now how to end that? That's the question. What should you do about it now? The thing is, what you should do is, first of all, don't lose your cool. Respond it in a cool way. And first of all, don't respond to the person who's bullying you. उसके किसी भी मैसेजेस का जवाब मत दो। कुछ भी कर रहा है, डोंट respond to him. Just make him feel like you are ignoring it. आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। क्योंकि आप जितना बताओगे उसको कि मुझे फर्क पड़ रहा है या आई एम नॉट लाइकिंग इट, वो उतना ज़्यादा आपको प्रेशराइज करेगा, उतना ज़्यादा आपको एम्बैरस करेगा, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ फन टू देम। सो डोंट रिस्पॉन्ड टू दैट, इग्नोर इट टोटली। व्हेन आई से इग्नोर इट फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, डोंट इग्नोर इट फ्रॉम योर एंड। उस टेक्स्ट का या उस कंटेंट का स्क्रीनशॉट ले लो, उसका प्रूफ बना लो, बिकॉज इट माइट गेट यूज्ड इन लेटर। अगर आप उस पे एक्शंस लेते हो, यू माइट नीड दैट। सेकेंड थिंग इज व्हाट यू शुड डू इज, जिसने भी आपको ये हेट मैसेज भेजा है या जो भी आपको बुली कर रहा है, इट इज ऑन, लेट्स से इट इज ऑन अ फेसबुक प्लेटफॉर्म, ब्लॉक दैट यूजर इंस्टेंटली। सबसे पहले आप उसको ब्लॉक करो, बिकॉज यू डू नॉट वांट हिम टू सेंड यू फर्दर। वो आपको जितनी चीजें भेजेगा ना, योर माइंड विल गेट इम्पैक्टेड ऑन अ लार्जर स्केल। अगर आपको एक फोटो भेजा, यू विल फील लाइक, आपको थोड़ा बुरा लगेगा। अगर वो आपको एक और भेजता है, आपको और बुरा लगेगा कि यार ये क्यों बंद नहीं कर रहा, इसको बंद करना चाहिए, इसको बंद कराओ। यू स्टार्ट टू गेट एंशियस। आप उस पर गलत तरीके से रिएक्ट करना शुरू करोगे। यू माइट ऑल्सो रेस्पॉन्ड बैक इन अ बैड वे कि हटाओ इसको, या यू माइट ऑल्सो इवन थ्रेट हिम कि इसको हटाओ, अदरवाइज आई गो टू लीगल। फर्स्ट थिंग इज, डोंट respond to it. If you want to go legal, directly go. And remember, you're not alone in this. Trust that you should tell this to someone trusted. अगर आपके पेरेंट्स हैं जिनको आप ट्रस्ट करते हो, ऑफ कोर्स यू शुड ट्रस्ट योर पेरेंट्स, बट द थिंग इज, हर टाइम पे इट्स नॉट कंफर्टेबल टू शेयर एनीथिंग विथ योर पेरेंट्स, राइट। at least share it with a teacher, or maybe a friend who's more sensible or more knowledgeable in this field. किसी के साथ share करो कि this is what is happening with me. If not technical, at least they will give you mental support. अगर technical support नहीं भी दे सकते, they will at least be there with you. वो आपको mentally support करेंगे कि don't do this wrong, because आप गलत सोच रहे हो, you're not in your normal state, but your friend is. वो आपको control कर सकता है कि you should not react in a wrong way, right? अगर आपको उस थ्रेट पे लगता है कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू माय सेफ्टी, आई माइट नॉट इवन बी सेफ, जो भी मुझे थ्रेट दिए जा रहे हैं, कॉल द पुलिस इमीडिएटली। डोंट बी अफ्रेड ऑफ दैट। देर आर फ्यू हेल्पलाइन नंबर्स ऑन द राइट साइड इफ यू सी। हेल्पलाइन नंबर फॉर साइबर सेल, द फर्स्ट वन। आप ऑनलाइन पोर्टल भी दिए हैं गवर्नमेंट ने, cybercrime.gov.in। आप इस पे रजिस्टर कर सकते हो अपने रिक्वेस्ट, एंड ट्रस्ट मी, ऑल दीज आर वेरी स्पॉन्टेनियस एंड वेरी प्रोएक्टिव नाउ डेज। वो पुराना टाइम था जब इन चीज़ों पे कुछ आप फाइल कर दो, इट इज़ लाइक ओल्ड गवर्नमेंट सिस्टम बॉडी जिस पे कोई एक्शन नहीं होता, महीनों तक कुछ नहीं हो रहा उस पे, इट इज़ जस्ट लाइक अ पेंडिंग केस। It's not like that anymore. Cyber crime and cyber requests are being handled very proactively nowadays. So now again, one more thing that you should do is, और ये चीज़ आपको करना चाहिए बिफोर यू आर बीइंग बुलीड। आपको कोई बुली करे उससे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप कौन से फोटो शेयर कर रहे हो, आप क्या डिटेल शेयर कर रहे हो। आई बीन कॉलिंग दिस आउट अ लॉट ऑफ टाइम्स कि आप क्या शेयर कर रहे हो सोशल मीडिया पे, ये बहुत ज़रूरी है।
सो डोंट डू दैट। जिन फोटोज को आपको शेयर नहीं करना चाहिए, डोंट शेयर इट इवन विथ फ्रेंड्स ओनली, या ओनली मी पॉलिसी। अगर आप ओनली मी भी उसको टैग करके देते हो, समवन माइट गेट एक्सेस टू दैट। फॉर एग्जांपल, अगर आपके साथ फिशिंग हो गया, आपका फेसबुक अकाउंट किसी ने हैक कर लिया, आपकी फोटो प्राइवेट थी, सिर्फ आप देख सकते थे, बट नाउ दैट हैकर कैन ऑल्सो व्यू, बिकॉज वो आपका अकाउंट लॉग इन कर सकता है। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि keep your personal life separate from what your digital social life is. Also, one more thing that a lot of cases have been seen that फेसबुक या ऐसे किसी सोशल मीडिया पे अगर आपको कोई बुली कर रहा है, फेसबुक या ऐसे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको ऑप्शंस देते हैं टू रिपोर्ट दैट। अगर आपको कोई बुली कर रहा है, जस्ट रिपोर्ट दैट इंस्टेंस टू सोशल मीडिया, फेसबुक हो गया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एंड लॉट ऑफ दैट। दे ऑल्सो टेक प्रोएक्टिव एक्शंस विद इन 24 आवर्स टू 48 आवर्स मैक्सिमम। वो पोस्ट रिव्यू करती है उनकी टीम, एंड दे गेट इट डाउन इफ दे रियली सी दैट इट इज़ अ वायलेशन। बिकॉज साइबर बुली इज लाइक आई सेड, इट्स अ लीगल ऑफेंस। आप लीगली अलाउ नहीं कर सकते इसको। अगर आप करते हो, आपके ऊपर लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं, बिल्कुल। हेल्पलाइन नंबर फॉर दिस एंड ऑल दैट, ये आपको पता है। यू कैन ऑल्सो गूगल मोर अबाउट इट कि हाउ टू रिस्पॉन्ड टू साइबर बुलीज, हाउ टू रिपोर्ट अ साइबर क्राइम। बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। सो इतना कुछ जानने के बाद, a lot of thing have been discussed। हमने बहुत कुछ डिस्कस किया कि क्या हम करते हैं, क्या हम नहीं करते, कैसे होती हैं चीज़ें। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम क्या गलत करते आए हैं। इट ऑल कम्स बैक फ्रॉम व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। हमने जो पीछे डिस्कस किया, उसी का ये ब्रीफ है। नाउ आई बी गिविंग यू सम पॉइंटर्स कि आप क्या करते हो। अगर ऐसा करते हो तो क्या वो सही है या वो गलत है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इंस्टॉलिंग एप्स फ्रॉम अननोन सोर्सेज, if you are doing it, yes, you should not do that, it's wrong. Allowing all permissions without asking, yeah, without thinking, again, it's wrong thing. You should not allow all permissions. Installing useless apps, बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको useless app install. Downloading pirated movies, media files, अगर आप pirated movies या media files या softwares कुछ भी डाउनलोड करते हो, first thing, इससे आपकी सिक्योरिटी रिस्क पे है। दूसरी चीज़, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। आप पायरेसी में आपको imprisonment तक भी हो सकता है। सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट इट। यूजिंग क्रैक सॉफ्टवेयर या गेम्स, अगर आप क्रैक सॉफ्टवेयर या गेम्स यूज कर रहे हो, इट इज़ अ रॉन्ग थिंग। लाइक सिमिलर टू व्हाट पायरेटेड मूवीज एंड मीडिया फाइल्स, इनके पीछे मालवेयर्स एसोसिएटेड होते हैं। कोई रैंसमवेयर हो सकता है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपका डेटा आपसे ले रहा हो। टोरेंट एप्लीकेशंस आप यूज करते हो, इट्स अ रॉन्ग थिंग। बट एक्चुअली टोरेंट इज नॉट बैड इन इटसेल्फ। टोरेंट का यूज एक्चुअली गलत हो गया है। इट्स लाइक टोरेंट इज अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ आईटी। आई नॉट गोइंग टू डिटेल्स, बट टोरेंट एक बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन है इन द फील्ड ऑफ आईटी। बट टोरेंट हम मोस्टली यूज़ क्यों करते हैं? मूवीज़ डाउनलोड करने के लिए, या सॉफ्टवेयर, गेम्स, मूवीज़, या ऐसे कुछ कंटेंट्स डाउनलोड करने के लिए। नाउ दैट इज़ अ रॉन्ग एप्लीकेशन, बिकॉज टोरेंट इज मोस्टली यूज इन पायरेसी। Piracy is like I said, it's a criminal offense. So you should not be using torrent. Keeping useless and rarely used apps, अगर आप यूजलेस ऐप्स या बहुत ही रेयरली यूज ऐप्स अगर इंस्टॉल करते हो, जैसे मैंने आपको शेयर इट का एग्जांपल दिया था, अगर वैसे ऐप्स आपके फ़ोन पे इंस्टॉल्ड रहते हैं हमेशा, दैट्स अ रॉन्ग थिंग। यू शुड एटलीस्ट रिमूव सम ऑफ दोज एप्लीकेशंस जो आप बहुत ही रेयरली यूज़ करते हो। अनदर थिंग दैट यू शुड बी लुकिंग एट इज कि आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे आते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं आज के टाइम पे हमारे पास। उन सब पे आईडी पासवर्ड सेम होता है मैक्सिमम यूजर्स का, या सिमिलर होता है। अगर सेम नहीं है, जैसे योर नेम एट द रेट 123, एक एप्लीकेशन पे आपने 123 रख दिया, ये पासवर्ड खुद में ही बहुत इजी टू गेस है। एक हैकर जो कि बेसिकली पासवर्ड गेसिंग टेक्निक्स बहुत सारे हैं जो एडवांस्ड हैं, आपकी सोशल इंजीनियरिंग करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आता है, वन मोर एप्लीकेशन ऑफ सोशल इंजीनियरिंग इज योर पासवर्ड गेसिंग। आपका पासवर्ड बहुत इजीली गेस किया जा सकता है। मोस्टली बहुत लोगों के घर में उनका वाईफाई का पासवर्ड होगा उनका मोबाइल नंबर, या मे बी उनका नाम एट द रेट 123, इंडिया एट द रेट 123, या इंडिया एट द रेट करेंट ईयर विच इज़ 2020। बहुत सारे सिमिलर ऐसे पासवर्ड्स हैं जो कॉमन है, बहुत लोग यूज़ करते हैं। दैट इज इन टर्म्स कॉल्ड एज अ डिक्शनरी अटैक। टेक्निकली एक हैकर के पॉइंट से उसको डिक्शनरी अटैक बोलते हैं। डिक्शनरी इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। इन दिस केस इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पासवर्ड्स। वो एक कलेक्शन ऑफ पासवर्ड है, और आपके अकाउंट्स पे उन
कलेक्शन ऑफ पासवर्ड्स को हिट किया जाता है टू ट्राई एंड सी कि क्या इनमें से कोई पासवर्ड अगर हिट हो गया आपके अकाउंट पे जो आप यूज़ कर रहे थे, तो दे विल गेन एक्सेस विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना पड़ा उनको यूजिंग एनी अदर टेक्निक लाइक सोशल मीडिया, सोशल इंजीनियरिंग, फिशिंग और मालवेयर्स। वो डायरेक्टली आप कॉम्प्रोमाइज़ हो गए बिकॉज ऑफ अ रिस्क कि आपने पासवर्ड बहुत वीक रखा था, या आपने सेम पासवर्ड रखा है, सिमिलर पासवर्ड रखा है। नाउ सेम पासवर्ड का क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना एक अकाउंट कॉम्प्रोमाइज कर दिया फॉर सम रीजन, आपका जीमेल अकाउंट हैक हो गया, अगर आपका सेम पासवर्ड आपका फेसबुक का भी है, तो अगर जीमेल कॉम्प्रोमाइज हुआ, दे विल डेफिनेटली गो अहेड एंड ट्राई टू सी कि आपका जीमेल कहाँ कहाँ रजिस्टर्ड है। फेसबुक की कोई ना कोई ईमेल मिल जाएगी आपको आपके जीमेल में, उससे उस हैकर को पता चल जाएगा कि आप फेसबुक पे रजिस्टर्ड हो और इसी ईमेल एड्रेस से रजिस्टर्ड हो। नाउ वो फेसबुक पे जाएगा, सेम यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेगा, एंड अगर आपका पासवर्ड सेम था, दे विल गेन एक्सेस टू योर फेसबुक। या फिर हो सकता है आपने सेम नहीं तो सिमिलर रखा हो, राइट। सिमिलर रखा हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा पासवर्ड है rohan@123 जीमेल के लिए, हो सकता है मैंने फेसबुक पे रखा हो rohan@321, विच इज सिमिलर इन नेचर, थोड़ा बहुत चेंज किया। बिकॉज द वल्नरेबिलिटी इन द ह्यूमन माइंड इज कि आप कितने पासवर्ड याद रख सकते हो। हर कोई अपना पासवर्ड किसी ना किसी लॉजिक या एल्गोरिदम के बेसिस पे रखता है, और जब उनको चेंज करता है तो कुछ ऐसा रखता है कि वो बाद में भी याद रख पाए, राइट। सो दैट इज समथिंग जो हैकर्स एक्सप्लॉइट करते हैं। ऑफ कोर्स आप 50 अकाउंट पे अगर हो तो आप 50 का पासवर्ड नहीं याद रख सकते, आई एग्री, मैं भी नहीं रख सकता। बट एटलीस्ट कीप चेंजिंग द पासवर्ड, और यू आर लाइक सिमिलर पासवर्ड मत रखो, आप सेम पासवर्ड तो डेफिनेटली मत रखो, एक कैरेक्टर भी चेंज कर दो। द मोर यू मेक इट डिफिकल्ट फॉर एन हैकर, द मोर यू आर सिक्योर। उनको जितना इजीली आप डेटा दोगे, जितना इजीली उनको एक्सेस दे दोगे, आप उतने रिस्क पे हो। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आप एक वेबसाइट है हैव आई बीन पॉन्ड, आप सर्च करना हैव आई बीन पॉन्ड ऑन गूगल, आपको एक वेबसाइट मिलेगी। प्रोवाइड योर ईमेल एड्रेस टू दैट वेबसाइट। वहाँ पे आपको बेसिकली मिलेगा कि जितने भी हैक्स या कॉम्प्रोमाइजेस हुए हैं इन द पास्ट, उनमें से क्या आपका आईडी पासवर्ड कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ है। वो सारे लिस्ट परचेस करते हैं जो हैकर्स सेल करते हैं, और वो आपको बताते हैं कि आपका अकाउंट, फॉर एग्जांपल अगर जैसे अभी ट्विटर हैक हुआ था, सो फॉर एग्जांपल अगर अगर बिल गेट्स हैव आई बीन बॉन्ड यूज करता है एंड ही प्रोवाइड्स हिज ईमेल एड्रेस, हैव आई बीन बॉन्ड उनको बताएगा कि ट्विटर अकाउंट जो 2020 में हैक हुआ था उसमें आपकी आईडी एंड पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हुई थी। अब बिल गेट्स इज लाइक अ बिग पर्सनालिटी, उसको पता है, बट जनरल पर्सन लाइक यू एंड मी, वी डोंट नो कि हमारा आईडी पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हुआ। इट विल नॉट बी हाईलाइटेड इन मीडिया और समथिंग, वो हमें पता भी नहीं चलेगा अनलेस वी रियलाइज कि हमारे अकाउंट से कुछ गलत किया गया। नाउ इफ दे आर आइडल और वो सिर्फ आपका डेटा ले रहे हैं बैकएंड पे इन अ डिसगाइज, वो कुछ नहीं कर रहे ताकि आपको पता चले कि उनके पास आपके अकाउंट का एक्सेस है, यू माइट इवन नॉट नो दिस फॉर ईयर्स। So use these kind of services. After the session, I'll provide this website's link in the chat. मैं chat पे इस website का link भी डाल दूंगा, so that you can go and access that link. Check that website to see if you are compromised anytime in the past. And the better part is कि if you sign up with them, वो आपकी आईडी मॉनिटर करते हैं। एंड आईडी व्हेन आई से मॉनिटर करते हैं, आपकी आईडी मॉनिटर करते हैं इन द हैक लिस्ट। जो भी हैक डेटा रिलीज करते हैं हैकर्स, उनमें आपकी आईडी मॉनिटर करते हैं, ढूंढते हैं। अगर आपकी आईडी कहीं भी मिलती है इन अ कॉम्प्रोमाइज लिस्ट, वो आपको नोटिफाई करते हैं कि इन द रीसेंट हैक फॉर एक्स वाई जेड कंपनी आपका आईडी कॉम्प्रोमाइज हुआ था, एंड दे रिकमेंड यू विद सम सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस की पासवर्ड चेंज कर लो, change it in a different way, don't make it similar password, all those security practices जो मैं आपको बता रहा हूँ, you will get to know that. So these are some online services जिनका आप use कर सकते हैं, and all of these are free. And yes, of course, when I say free, don't relate it to that data theft वाला. Of course, they are also getting your personal information अगर वो hack data से आ रहा है. If you are very often surfing untrusted websites, untrusted for example अगर आपको for example Facebook पे हो, या आप किसी ऐसी वेबसाइट पे हो जहाँ पे आप मूवीज देख रहे हो, अनऑथराइज्ड ऑब्वियसली, जहाँ पे आप मूवीज देख रहे हो या आपको कोई ऐड मिला, राइट, आप उस ऐड पे क्लिक करते हो। नाउ दैट ऐड जो जो आपने क्लिक करा, दैट माइट टेक यू टू अ मलिशियस वेबसाइट जहाँ पे बैकएंड पे कोई वायरस या कोई मालवेयर डला है, या हो सकता है कोई की लॉगर डला है। जो बेसिक की लॉगर इज बेसिकली अ प्रोग्राम जो आपके सारे की स्ट्रोक्स जो भी आप कीबोर्ड पे टाइप करते हो वो रिकॉर्ड करता है। ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो आपके की स्ट्रोक्स लॉग करते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इफ़ यू डोंट ट्रस्ट अ वेबसाइट, डोंट क्लिक हियर एंड देयर। ऑनलाइन एक्टिविटी पे बहुत केयरफुल रहो कि आप कहाँ क्लिक कर रहे हो, आप किस वेबसाइट पे हो, आप क्या कर रहे हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
ऑफ कोर्स यू शुड नॉट बी शेयरिंग योर क्रेडेंशियल्स विद एनीवन। आप किसी के साथ भी अपना आईडी पासवर्ड शेयर मत करो। अनदर इज आप अपने बैंक डिटेल्स ऑब्वियसली आप शेयर नहीं करते हो, बट इफ यू आर डूइंग इट, यू आर डूइंग अ रॉन्ग थिंग। यू शुड नॉट डू दैट। अवॉइड जितना भी आप कर सकते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे या वेबसाइट्स पे अपने क्रेडिट कार्ड बैंकिंग डिटेल्स सेव करना, उनको उस लेवल तक अवॉइड करो अनलेस इट इज़ मैंडेटरी और उसके बिना आपका काम नहीं हो रहा। राइट। आप अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स मैनुअली डाल के भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। इट्स लाइक हार्डली 2 मिनट थिंग। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा आपको मैनुअली एंटर करना आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल या डेबिट कार्ड डिटेल्स। I saw in the chat as well someone recommended private and incognito window. That was totally right. बिल्कुल। अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट्स एक्सेस कर रहे हो जो कि एसेंशियल नहीं है, यू कैन यूज दिस इन अ प्राइवेट और इनकॉग्निटो मोड। प्राइवेट एंड इनकॉग्निटो मोड बेसिकली आपके वेब ब्राउजर का एक फंक्शन है जो कि आपको अलाउ करता है, उससे कोई ट्रैकिंग नहीं होती है। उसमें ट्रैकिंग प्रिवेंशन एल्गोरिदम्स होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं उसके अंदर एम्बेडेड जो आपके ट्रैकिंग को रोकता है। आई रिकमेंड फायरफॉक्स। इट्स एन ओपन सोर्स एप्लीकेशन। गूगल क्रोम भी यूज़ करते हो आप, इट्स फाइन, यू कैन यूज़ दैट। गूगल क्रोम भी आपको फंक्शन देता है इनकॉग्निटो मोड का। इफ़ यू आर सर्फिंग अ नॉन असेंशियल वेबसाइट, प्रेफर डूइंग इट ऑन इनकॉग्निटो या प्राइवेट ब्राउज़र पे। ब्राउज़र एक्सटेंशंस इंस्टॉल करते हो आप, आइडली डोंट डू दैट। मोस्ट ऑफ द ब्राउज़र एक्सटेंशंस जो होते हैं वो आपकी वेबसाइट से डेटा निकालते हैं। और इट्स लाइक आप जो भी सर्फ कर रहे हो, फेसबुक पे हो अगर आप, तो फेसबुक पे आप जो भी कर रहे हो वो सारा कुछ लॉग करके अपने पास सेव करते हैं। और ऑफ कोर्स बाकी सारी वही यूजर्स हैं जो हमने पहले डिस्कस किया है। आपके मोबाइल नंबर्स आप अगर शॉपिंग में देते हो, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि लॉयल्टी कार्ड्स या आप शॉपिंग मॉल में गया वहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर शेयर किया, तो उस मोबाइल नंबर की क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिसयूज हो सकती है अगर आप वहाँ पे डालते हो। ट्रस्ट मी, देर इज नो लॉ विच सेज कि आपको मैंडेटरीली आप कस्टमर का मोबाइल नंबर लेना है इन दैट इनवॉइस। नो, इट इज़ नॉट मैंडेटरी अनलेस इट इज़ अ बैंकिंग और एन इंश्योरेंस एनवायरनमेंट। अगर आपका शॉपिंग है, शॉपिंग मॉल है, बिग बाजार टाइप लोकेशंस है, वो आपसे मोबाइल नंबर मांगते हैं, सिंपली डिनाई इट एंड सी देयर रिस्पॉन्स व्हाट दे विल से। दे विल जस्ट टेल यू कि सर इसमें आपको ऑफर मिलेगा, फायदा होगा। आई डोंट नीड दैट ऑफर जो मेरे ही privacy को कॉम्प्रोमाइज करे। Now it's your call to make if you want to keep your privacy on top or if you want to get that small offers on top. Registering on loyalty cards, we have already discussed, it's the same thing. Don't register for that. Don't share everything on social media. I've been saying this in past slides. Keep a boundary on what you're sharing on social media. जो आप social media पे share कर रहे हो और जो आपकी personal life है, उसमें एक एक boundary define करके रखो कि मुझे क्या share करना है, क्या नहीं share करना है। Of course, you should be using an antivirus program. If you are using it, that's good. If not, get one soon. Yeah, I'll recommend that. आज के time पे viruses का बहुत impact है. So get one antivirus, really, a paid one. Now, अगर आपको कोई fraud या कोई threat मिलता है, should you report to the authorities? Now, authorities like आपके parents भी हो सकते हैं, आपके teachers हो सकते हैं, आपकी school के management हो सकती है, लॉ इन्फोर्समेंट हो सकता है, पुलिस हो सकता है, साइबर सेल हो सकता है। शुड यू रिपोर्ट दिस? द आंसर इज यस, यू शुड ऑलवेज रिपोर्ट दैट। शुड यू रिस्पॉन्ड टू द बुलीज? नो, यू शुड नेवर रिस्पॉन्ड टू दैट बुलीज। प्रमोट या शेयर अनवेरिफाइड इन्फॉर्मेशन। आपको व्हाट्सएप पे कुछ मैसेजेस आते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल लॉकडाउन में बहुत सारे आ रहे थे कि लॉकडाउन इतने दिनों के लिए बढ़ गया, या बहुत सारे फेक न्यूज़ आते हैं उनको, शुड यू प्रमोट या फर्दर शेयर इट? आपको क्या वो आगे फॉरवर्ड करना चाहिए? द आंसर इज नो। इट इज़ ऑल्सो लीगल ऑफेंस। अगर आप अनवेरिफाइड या फेक वीडियोस अगर आप प्रमोट कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, आपके ऊपर लीगल एक्शंस भी लिए जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। बहुत सारे ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे आपके ऊपर एक्शंस हो सकता है। आपने बहुत सारे न्यूज़ पढ़े भी होंगे कि ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन फेक न्यूज़ बहुत सारे सर्कुलेट हुए व्हाट्सएप पे, ग्रुप एडमिन्स को अरेस्ट किया गया था। सो अवॉइड कमिंग इन टू दैट सिचुएशन जहां आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़े अपनी लाइफ में। इट गिव्स अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। अगर आप एक बार भी अरेस्ट हो गए ना, ट्रस्ट मी, यू विल नेवर फॉरगेट दिस इन योर लाइफ। सो डोंट गिव कम टू अ सिचुएशन जहां आपको ये सब कुछ फेस करना पड़े। स्टे एज फार एज अवे पॉसिबल फ्रॉम दीज सिचुएशंस। यू शुड नॉट बी यूजिंग योर पब्लिक privacy सेटिंग्स ऑन सोशल मीडिया। कुछ भी पब्लिक privacy के साथ तो एटलीस्ट मत डालो। Even if you're sharing a lot of contents, don't do it with a public privacy. You don't know who is watching that, उसका क्या misuse किया जा सकता है।
If you're ignoring terms and conditions and privacy policy, that's a wrong practice. But I understand you cannot read that 700 pages of terms and conditions. But like I said, उसके कुछ रिव्यूज मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन. एटलीस्ट गो थ्रू दैट रिव्यूज. वहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स हैं आपको जो उसको बहुत ही शॉर्ट एंड समराइज वे में बताएंगे. सो एटलीस्ट यू शुड नो दैट कि आपका डेटा कहाँ जाएगा, व्हाट विल बी इट यूज्ड फॉर एंड ऑल दैट. रैंडम लिंक्स पे जो आप वेबसाइट पे ईमेल्स पे और एसएमएसेस आते हैं आपको बहुत सारे कि गेट 50% डिस्काउंट ऑन एक्स वाई जेड सर्विसेज, क्लिक ऑन दिस लिंक. यू नेवर नो व्हाट इज दिस लिंक गोइंग टू टेक यू एट. उस लिंक के पीछे क्या होगा, वेयर इज इट टेकिंग यू, हाउ जेन्युइन इट इज, सेंडर जेन्युइन है नहीं है, यू डोंट नो. देयर इज नो यूज इन क्लिकिंग इफ यू डोंट ट्रस्ट दैट. अगर आपको उस पर ट्रस्ट नहीं है, यू डोंट नो हु द सेंडर इज, डोंट क्लिक ऑन दैट. नाउ शेयरिंग योर पर्सनल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, अगर आप किसी स्ट्रेंजर्स के साथ या ऑन सोशल मीडिया, लाइक आई सेड फेक अकाउंट वाले एग्जांपल्स दिए थे मैंने आपको, वहां पे कोई भी पर्सनल या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर मत करो आप किसी के भी साथ. यूजिंग फेक प्रोफाइल्स टू बुली अदर्स, अगर आप इन दिस एज यू आर क्रिएटिंग फेक प्रोफाइल्स टू बुली अदर्स या मिस यूज देम, आई वुड लाइक टू टेल यू दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस अगेन. आप फेक प्रोफाइल्स में अगर किसी को बुली करते हो या किसी की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर आप मिसयूज करते हो या गैदर भी करते हो, इनफैक्ट इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस बेसिस ऑन आवर आईटी एक्ट. Keep your device updated. Yes, that's a good practice. Always keep your device updated. Now, that was pretty much about the discussion. What have we learned so far? What's the conclusion of this session? The point is, data is the next gold. Like I told you, हर कोई डेटा के पीछे है, whether it is China, US, Europe, India, Australia, anywhere go in the world, all are interested in your data. सब कंपनीज आपका डेटा ले रही हैं. No one is excluding that. Indian app Arogya Setu, I saw it in the chat sometimes back. Someone quoted that. Yes, it also gets to know about your personal information like your mobile number, your location. But there is a greater cause on that. It's the application was developed to help in this situation. जहाँ पे ये COVID-19 की situation है, the purpose of this app is to keep you safe. Like I said, you cannot protect yourself from everything. The thing is, you have to decide whether you want to use this or not. आपको अगर वो सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है अपने privacy के ऊपर, प्लीज़ गो एंड इंस्टॉल दैट. देर इज़ नो हार्म इन दैट. बट इफ़ यू फील कि आपकी privacy आपके COVID-19 सिक्योरिटी से ऊपर है, देन डोंट इंस्टॉल दैट. आपकी privacy कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं ले रहा है. इट्स लाइक इट्स ऑन योर चॉइस, राइट? बट द थिंग इज, you are in control of your data in today's world at some extent. There are some times जहाँ पे आपके पास कंट्रोल नहीं है आपके डेटा का. It's totally understandable, but the thing is, from you and me, like a general person, जितना डेटा हमारे लिए important है, we are still in control of that. So we should adopt those practices जो अभी मैंने discuss किया यहाँ पे. In your daily life, I know आप सब कुछ नहीं adopt कर सकते in single go or one go, but try to start adopting these practices जो कि आपको in a longer run बहुत help करेगा. नॉट जस्ट टू प्रोटेक्ट योर डेटा बट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, और आपको ऐसे सिचुएशन से भी दूर रखेगा जहाँ पे यू डोंट हैव टू फेस एनी लीगल चैलेंजेस. आपको अरेस्ट नहीं होना पड़ेगा. यू डोंट फॉल फॉर अ ट्रैप, यू डोंट फॉल फॉर अ क्राइम, आपको कोई ब्लैकमेल ना कर पाए. अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमने अभी डिस्कस किया था. सो दीज आर सम रियली गुड सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस जो आपको डेली लाइफ में यूज़ करना चाहिए फॉर योर बेटरमेंट. So your security is your responsibility. Of course, no one else is going to take care about your security. आपको खुद ही अपनी security के बारे में सोचना है और उस पर action लेना है. Of course, there is a change. आपकी online activity में आप बहुत सारे changes required हैं. If you want to be a privacy focused person, बहुत सारे changes आपको आपके online activity में करने पड़ेंगे. एंड इट इज़ नॉट लाइक कि आपको आज ही से करना है. स्टार्ट डूइंग इट वन बाय वन. आप एक चेंज अडॉप्ट करो, यू विल सी द डिफरेंस, यू विल स्टार्ट अडॉप्टिंग नेक्स्ट योर सेल्फ. आपको किसी से इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर आप एक सिंगल स्टेप भी अगर आप लेते हो आज अपने ऑनलाइन एक्टिविटी में चेंज करते हो, यू विल सी द डिफरेंस योर सेल्फ. वी कान सिक्योर एवरीथिंग, दैट्स अ फैक्ट कि हम हर कुछ सिक्योर नहीं कर सकते. आप अपना पासवर्ड कितना भी सिक्योर रख लो, फॉर एग्जांपल आपका अगर जीमेल अकाउंट है, आपने पासवर्ड बहुत सिक्योर रखा है, बिल्कुल यूनिक है, किसी भी दूसरे अकाउंट से मैच नहीं करता. अगर जीमेल खुद में कॉम्प्रोमाइज हो जाए, जीमेल खुद ही हैक हो जाए,
आपकी आईडी पासवर्ड ऐसे भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। सो द फैक्ट इज आप सब कुछ सिक्योर नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट जितनी चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, लेट्स डू दैट, राइट? इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग कि मैं करूंगा फिर भी हो सकता है, we should stop complaining and do what we can, what's in our hand, we can do that. सिक्योरिटी इज जस्ट नॉट योर अलोन एक्टिविटी। अगर आपको सिक्योर रहना है, आपको अपने आसपास के लोगों को भी सिक्योर करना पड़ेगा, एंड टू सिक्योर देम यू हैव टू एजुकेट देम टू। इट्स नॉट लाइक कि it was a really wonderful session with you all. Looking at your age, I'll be glad अगर आप इन practices को adopt करो, so that you, me and all everyone together can build a secure and a privacy friendly life for everyone. uh, my session's objective is fulfilled. Thank you everyone for your time. Wonderful time. I think we have a wonderful audience, a very interactive ones, and I wish you a very successful future ahead, and best of luck. Thank you.